أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو سسٹر، اتنا وارم طریقے سے سلام کا رسپانس کرنے کے لیے۔ اللہ آپ سب سے راضی ہو، آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ نکالا ہے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا ایک ایک لمحہ عبادت کے طور پہ قبول فرمائے۔ سیشن 4 ہے، آج ہم اپنا لیسن نمبر 8 اور 9 اسٹڈی کریں گے۔ آئیے قرآن سمجھتے ہیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول یعنی یہ جو 7 کورسز ہیں جو قرآن سمجھنے کے لیے ہم کر رہے ہیں، اس میں ہم یہ پہلا کورس کر رہے ہیں، رائٹ؟ اور رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم سیکنڈ کورس جوائن کریں گے۔ تو یہ جو پہلا حصہ ہے، حصہ اول ہے، اس میں ہم نماز کے ذریعے سے قرآن بھی سمجھ رہے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو مسکرائیے اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے وہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس وقت میں الفلاح منزل E114 اسلام آباد پاکستان میں موجود ہوں۔ آف کورس ہماری کلاس جو ہے اس میں ابھی جو لوگ پریزنٹ ہیں اور جو بعد میں تھوڑی دیر میں جوائن کرنے والے ہیں یا جو ریکارڈنگ سنیں گے، ان سب کو سلام پیش کرتی ہوں۔ انہوں نے میجورٹی آف کورس پاکستان سے ہیں اور پاکستان سے باہر سے بھی، USA سے، ہمارے پاس نیو یارک سے اور جدہ سعودی عربیہ سے اور انڈیا سے بھی لوگ موجود ہیں اس کلاس میں، اور کینیڈا سے بھی ایک سسٹر موجود ہیں۔ ماشاءاللہ آپ سب کو میں سلام پیش کرتی ہوں۔ الفلاح منزل کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ لائک مائنڈیڈ فیملیز کو اکٹھا کیا جائے۔ کس بیس پر؟ قرآن کی کتاب کی بیس پر، اللہ کی کتاب قرآن کی بیس پر، یعنی اللہ کا جو کلام ہے وہ حق ہے، اس کو سمجھتے ہوئے، ڈائریکٹ انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ہم دین کو سمجھیں اور 24/7 اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں۔ تو یہ میرا، آپ کا، ہم سب کا مقصد ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ اب تک ہم نے 7 لیسنز مکمل کیے ہیں، رائٹ؟ آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ اور اس وقت سلائیڈ آپ کو ویزیبل ہے جس میں سارے ٹاپکس نظر آ رہے ہیں؟ جی جی استاذہ۔ جی دیٹس رائٹ، ماشاء اللہ۔ تو یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گی تھوڑا سا تاکہ ریکال ہو جائیں چیزیں۔ ایک تو یہ کہ دہرائی بہت ضروری ہوتی ہے، آپ اتنی جہاں محنت کر رہے ہیں، اگر آپ ساتھ ساتھ بھولتے جائیں گے تو پھر کیا ہی فائدہ۔ تو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں، یہ جو پہلا آپ دیکھ رہے ہیں تعوذ، یہ ہم نے لیسن 1A میں اسٹڈی کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں سورۃ الفاتحہ کی، تو یہ ہم نے دوسرے دن یعنی جو ہمارا سیکنڈ ڈے تھا اس کورس کا، اس میں ہم نے اس کو اسٹڈی کیا تھا۔ اس میں لیسن نمبر 2، 3 اور 4A ہم نے اسٹڈی کیے تھے۔ A پارٹ مطلب قرآنی حصہ، B پارٹ میں ہم گرامر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جو باقی یہ سارا حصہ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں کہ اذان ہے، فجر کی اذان، اقامت، وضو کی دعا، رکوع و سجود کے اذکار، یہ سب ہم نے انڈرسٹینڈ کیے تھے لیسن نمبر 5، 6 اور 7 میں، اور اس کا A پارٹ تھا، ٹھیک ہو گیا؟ تو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ نے دہرایا ہوگا۔ دہرانے کے لیے ضروری ہے کہ ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں۔ اگر آپ نے لائیو کلاس نہیں لی تو آپ کو ویڈیو دیکھنی چاہیے۔ ویڈیو ریکارڈنگ اسی لیے شیئر ہوتی ہے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ، مطلب ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک حصہ جو آپ کو سمجھایا گیا ہے اس کا معنی آپ کو آنا چاہیے۔ رننگ ٹرانسلیشن، بامحاورہ ٹرانسلیشن کافی نہیں ہوتی، وہ تو ایک سیکنڈ چیز ہوتی ہے اپنی زبان میں سمجھنے کی۔ اصل بات یہ ہے کہ عربی کے اس لفظ کو سمجھا جائے تاکہ ہم اصل میں سمجھ پائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات فرما رہے ہیں، کس طرح سے فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جب ہم گرامر میں آتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہے، I'm sorry، اوکے، سو گرامر میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ضمائر منفصلہ کا جو ٹیبل ہے، سو سوری، میں آپ کو بھی بتاتی ہوں ذرا، گیو می اے منٹ۔ رائٹ، تو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ٹیبل تھا، یہ ہم نے 1B میں سمجھا تھا، یعنی سب سے پہلا دن تھا جو ہمارا پہلا سیشن تھا اس کورس کا۔ اور یہ ٹیبل کون سا ہے؟ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب،
नहनु हम। ये इशारों के जरिए 6 लफ्ज हमारे बेसिक थे जो हमने सीखे थे, और इसी से हमने टेबल बना के फिर छोटे छोटे से सेंटेंस बनाए थे और बहुत एंजॉय किया था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अगले वेनसडे को जब हम मिले तो हमने कौन सा हिस्सा पढ़ा था? हमने ये वाला सारा हिस्सा मुकम्मल किया था जिसमें ये भी था। तो सबसे पहले हमने बात की थी इसम फेल हर्फ क्या होते हैं, राइट? ये देखेंगे, हमने 2, 3, 4 का बी पार्ट समझा था। ठीक है, इसमें क्या था? इस्म वो लफ्ज जो कोई नाम या सिफत बताएं, अच्छा है, वो बुरा है, वो ऐसा है, वैसा है, या किसी चीज का नाम, वो सारे लफ्ज अरबी में इस्म होते हैं। फेल वो लफ्ज होते हैं जो कोई काम बता रहे हो कि तुम ये कर रहे हो, खाना खाया था, पिया था, पी रहा हूं, ये काम करूंगा, कोई भी ऐसा लफ्ज जो काम बताए और जमाना मौजूद हो उसको फेल कहते हैं। हर्फ वो होता है जो इसम और फेल के अलावा जितने लफ्ज हैं कुरान में वो हर्फ हैं। डिटेल डेफिनेशन हम ग्रामर के हिस्से में स्टडी करेंगे। ठीक है, और आम और खास इसम क्या होता है? जैसे एक इसम है मुस्लिम, एक मुसलमान मर्द को मुस्लिम कहते हैं। अगर उसके शुरू में अलिफ लाम आ जाए तो वो खास इसम होता है, जैसे अल मुस्लिमो। ठीक है, और अगर उसके आखिर में तनवीन आ जाए, दो पेश, दो जबर, दो जेर, और शुरू में अलिफ लाम नहीं होता, तो उसको आम इसम कहते हैं। आम और खास, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन हम इनको कह सकते हैं। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि वाहिद से जमा कैसे बननी है, तो उसका एक अंदाज, एक तरीका अरबी का हमने सीखा था। यानी अगर एक मुसलमान मर्द है जिसको मुस्लिम कहते हैं, तो उसकी जमा बनाने के लिए वाव नून लगाएंगे तो मुस्लिमून बनेगा, या फिर या नून लगाएंगे तो मुस्लिमीन बनेगा। तो ये दो अंदाज हमने सीखे थे यहाँ पर। फिर हम आए थे जमायर मुत्तसिला के टेबल पर, और ये कौन सा था? जैसे जमायर मुनफसिला का टेबल था ये वाला, बिल्कुल इसी तरह मुत्तसिला का टेबल भी उस जैसा ही था, इशारे सेम थे। हु उसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। तो रब्बुहु रब्बुहुम उसका रब, उन सबका रब, रब्बुका रब्बी तुम्हारा रब, मेरा रब, रब्बुकुम रब्बुना तुम सबका रब, हमारा रब। तो ये 6 लफ्ज हमने यहाँ पे सीखे थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और इशारे दोनों टेबल्स के सेम थे। फिर हमने मुजक्कर से मुअन्नस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। यानी ये जो पहला टेबल हमने पढ़ा था ना, ये वाला हुआ हम, इसके आखिर में हमने हिया लगा दिया। हिया का मतलब होता है वो एक औरत, लेफ्ट हैंड के इशारे से हमने कहा था हिया, शी, या वो एक औरत। तो टेबल बन गया हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, हिया। इसी तरह एक मोनस लफ्ज हमने इस टेबल के साथ जोड़ दिया था, ये जो आप देख रहे हैं टेबल। यानी हमने कहा था रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बुका तुम्हारा रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम तुम सबका रब, रब्बुना हमारा रब। तो हमने यहाँ एक मोनस लगा दिया लेफ्ट हैंड से, रब्बुहा उस औरत का रब, उस मोनस का रब। तो रब्बुहु मुजक्कर के लिए, रब्बुहा मोनस के लिए, ये मोनस पढ़ा था। तीसरी मोनस की बात हमने यहां से कनेक्ट की थी, ये जो आप देख रहे हैं मुजक्कर वाहिद से जमा। तो उन्होंने कहा कि अगर एक मुसलमान मर्द को मुस्लिम कहते हैं अरबी में, तो मोनस बनाने के लिए उसी मुस्लिम के आगे आप गोल ता लगा दें। मुस्लिम से मुस्लिमा, मुस्लिमुन से मुस्लिमतुन, ये मोनस बनती है एक मुसलमान औरत। अगर ज्यादा खवातीन हैं तो जो आपने मुस्लिमतुन बनाया है उसकी गोल ता हटाकर अलीफ और लंबी वाली ता लगा दें, तो मुस्लिमतुन एक मुसलमान औरत, और मुस्लिमातुन ज्यादा मुसलमान औरतें। अब ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको रिवाइज लाइटली करवा रही हूँ, इनकी डिटेल समझनी है। अगर आपका ये लेसन मिस हो गया था, आप न्यू कमर हैं, तो आप पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, वो आपके पास मौजूद है, या अगर आप ग्रुप में नहीं थे तो आप मुझे मैसेज करके पर्सनली मंगवा सकते हैं। ठीक है, ओके। और लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो हमने पिछले हफ्ते स्टडी किया था, वो ये था, ये हमने स्टडी किया था लेसन 5, 6 और 7 के बी हिस्से में, यानी ग्रामर में। 9 लफ्ज ऐसे बताए गए थे जो हरूफ के तौर पर काम करते हैं। ली या लाम जबर ला, मिन, अन, बी, फी, अला, इला, मा, इंदा। ये कहा गया था ये 9 लफ्ज हैं जो कि हर्फ के तौर पर काम करते हैं, और यानी इसम फेल हर्फ में से ये हर्फ हैं, इसम भी नहीं है, फेल भी नहीं है, बल्कि हर्फ हैं। लेकिन इनमें याद रखना है कि जो आखिरी दो हैं ये वाले मा और इंदा, ये काम तो हर्फ की तरह करते हैं लेकिन ये असल में इसम है।
तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, और हमने इस टेबल को इन इन 9 लफ्जों को इस टेबल के साथ मिलाकर हमने प्रैक्टिस की थी, यानी हु, हुम, का, ये, कुम, ना के साथ इनको मिलाते गए और प्रैक्टिस करते गए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लेसन नंबर 8 और 9 पढ़ेंगे। नमाज का एक बहुत ही अहम हिस्सा तशहुद, जो अक्सर लोगों का कमजोर होता है रिसाइट करने में भी और समझने में भी। अक्सर लोग जो है वो इस हिस्से को सही तरह समझते नहीं ना, अक्सर बोलने में भी गलती कर रहे होते हैं, अदा करने में भी, और मानी भी नहीं समझते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, आज हम इसको समझेंगे। दुरूद बड़े खूबसूरत दुआ है हमारे नबी के लिए, हम इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि मैं अपनी ऑनलाइन सिस्टर्स को जरा देख लूं कि अभी तक क्लास में कौन कौन है। एटलीस्ट लेट कमर्स को भी अब तक ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि वो सारे हिस्से समझें। तो आई अप्रिशिएट सिस्टर अफशा, इसरार, अंबर, बुशरा बीबी, फरहीन अनवर, और कौन है हमारे साथ, कोसर, किंजुल ईमान, नसीम आसिफ, नुजरत मसूद, सादिया इकबाल, साइमा, ओके, साजिदा याकूब, शबाना असगर, शाजिया, उज़मा किरण, ओके, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह ये हमारे साथ हैं। और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगी नेक्स्ट टाइम जब आप क्लास में हो, चाहे तो अभी अपने आप को रीनेम करके अपने नाम के आगे डैश लगाएं, और फिर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर तो पाकिस्तान से हैं तो सिटी का नाम लिख दें, अगर किसी और कंट्री से हैं तो आप कंट्री मेंशन कर दें। तो ये अच्छा हो जाएगा, जरा एक दूसरे को जानने के लिए अच्छा रहता है सब लोगों के लिए। ठीक है, चले जी, तो मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान बनाया है कुरान को जिक्र के लिए, यानी समझने के लिए, हिफ्स करने के लिए, याद करने के लिए। फहल में मुद्दकिर, तो क्या कोई है जो गौर करे, जो सोचे समझे, जो दिमाग लगाए। तो ये अल्लाह की खूबसूरत पुकार है, हमारे लिए दावत है। तो बिल्कुल हम लब्बैक कहते हैं, बिल्कुल हम मौजूद हैं, हम कुरान को समझेंगे। ये जो अल्लाह ने एहसान कर दिया कि आसान भी बना दिया हमारे लिए, मुश्किल भी होता तो भी हमें सीखना पड़ता, लेकिन अल्लाह का करम है कि उसने आसान बनाया। तो हम इंशाल्लाह ये एफर्ट शुरू कर चुके हैं और हम इसके साथ जुड़े रहेंगे। ये हिस्सा बड़ा खूबसूरत है। एक तो जो कारी जिनकी आवाज़ में आप ये सुन रहे हैं, ये आवाज़ बड़ी खूबसूरत अदायगी के साथ आप सुनेंगे। और अभी बेहतर है कि आप ध्यान से सुने, दिल में आप उसको रिपीट भी कर लें माइक ऑन किए बगैर, ताकि आपकी कहीं अगर कोई गलती है तो वो दुरुस्त हो जाए। ठीक है, आइए इसको मिलके सुनते हैं। अगर मैं इसको ऑन करने लगी हूँ, अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही हो तो बताइएगा। التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने देखा कि कितनी खूबसूरत अंदाज में, क्या हम भी अपनी नमाज में इस तरह से अदायगी करते हैं? ये सवाल है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। या हम जल्दी जल्दी के चक्कर में अत्तहियातुलिल्लाहि ऐसे पढ़ रहे होते हैं। सोचें कितनी मोहब्बत से ये अदायगी हुई है, और हमें भी करनी चाहिए। मुझे यकीन है कि आज का लेसन जब आप ध्यान से सुनेंगे ना, इसमें क्या क्या मैसेजेस हैं उनको जब आप देखेंगे तो आप यकीनन आपका भी दिल चाहेगा कि नेक्स्ट टाइम आप मोहब्बत से फील करके इसको अदा करें। तो मैं यहीं पर बताना चाहूंगी कि 3 हिस्सों में हम इसको समझेंगे। एक हिस्सा आप देख रहे हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज तो हमें यही मिल रहा है। दूसरी बात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, दूसरी ये एक अलग एक बात है, एक पूरा पूरा मैसेज है जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, दुआ है। उसके बाद तीसरा है अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, ये ये क्या है इसको देखेंगे। और लास्ट में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं। जी जनाब।
तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो अल्फाज कितने देख रहे हैं, आपको वाज़ेह तौर पर अल्फाज नजर आ रहे हैं जी, 4। अत्तहियातु सभी कोली इबादतें, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए हैं, वस्सलावातु और सभी बदनी इबादतें, वत्तय्यिबातु और सभी माली इबादतें। तो ये है जी, ये अल्फाज हैं। अब हम एक एक लफ्ज को देखते हैं। ये जो पहला लफ्ज हमें नजर आ रहा है अत्तहियातु, आप जरा गौर करके बताएं, आपको क्या लग रहा है, ये इस्म है, फेल है या हर्फ है? इसम है, अल लगा हुआ है इसमें है। वेरी गुड, वेरी गुड, और जमा है मोहन्नस की आत, अभी आपने बताया था। वेरी गुड, आतु माशाल्लाह। आपका। सिस्टर ने तो पूरी डिटेल बता दी, वेरी गुड। तो आपने देखा कि एक तो अलिफ लाम है, इसका मतलब है ये खास इस्म है, खास इस्म कहा जा रहा है इसको ग्रामर के हिसाब से। और ये मोन्नस की जमा है, जैसे मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन बना था, इसी तरह से तहिया से तहियात बन रहा है। यानी गोल ता हटाकर अलिफ ता लगा के लंबी वाली ता, पूरी वाली ता लगाई जाती है, तो मुअन्नस की जमा बन जाती है। ये एक सादा तरीका है, सिंपल तरीका है अरबी में जमा बनाने का। तो आपने देखा कि 3 तरह के लफ्ज यहाँ नजर आ रहे हैं। एक तो ये अत्तहियातु, उसके बाद अस्सलावातु, उसके बाद अत्तय्यिबातु। ये तीनों एक ही फॉर्मेशन में है, तीनों के साथ अलिफ लाम है, तीनों इस्म है, तीनों मोनस की जमा है। राइट। तो आप नीचे इनके वाहिद जमा याद भी कर सकते हैं। एक कोली इबादत को तहिया कहते हैं, और ज्यादा सारी इबादतों को तहियात। एक बदनी इबादत को सलात कहते हैं, और ज्यादा को सलावात। एक माली इबादत को तय्यिबाह कहते हैं, और ज्यादा इबादत को तय्यिबात। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। यस जी, मैम। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आप देख रहे हैं एक लफ्ज जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया, वो है लिल्लाही। तो अगर मैं आपको कहूं कि इसके टुकड़े अलग करें, इसके लफ्जों को हमने अच्छी तरह समझना है, तो कितने टुकड़े होंगे? 2 होंगे, ली और अल्लाह। वेरी गुड। लाम जेर ली और अल्लाह, अल्लाह के लिए। ठीक है। लाम जेर ली हमने पढ़ा भी था पिछले लेसन में, ग्रामर में भी लाम जेर ली और लाम जेबर ला के साथ हमने इसको डिस्कस भी किया था। तो हम क्या कह रहे हैं कि तमाम कोली इबादतें, बदनी इबादतें, माली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं। जब हम सजदे के बाद बैठते हैं तशahहुद की पोजीशन में, तो हम ये अदा करते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात तो रह गई, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका नाम क्या है? पढ़ के बताएं जरा। तशहद। यहाँ ये इंपॉर्टेंट तशahहुद। पॉइंट है, अच्छा किया कि मैंने, मुझे याद आ गया। मैं आपको जरा बता दूं कि ये क्या है बेसिकली। ओके। सो जो लफ्ज हम बहुत अरसे से पढ़ते आते हैं, वो क्या होता है, जरा इसको यहाँ देख लें गौर से सब लोग। वेट। ओके। तो इस तरह से ये जो लिखा हुआ लफ्ज हमें नजर आता है। मैंने भी बहुत अर्ली एज में, इवन यूनिवर्सिटी टाइम में भी इन चीज़ों को स्टडी किया, और मुझे किसी ने नहीं बताया कि इसको क्या, इसको सही लफ्ज की प्रोनाउंसिएशन क्या है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्फला मंजिल आकर पता चला कि ये तशहद नहीं होता, ये लफ्ज होता है तशाहुद। तशहुद, इसको ध्यान से देख लें। ये बहुत, मतलब बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है, हम लोगों को। तो हमें चाहिए, अगर हमें पता चल गया हम दूसरों को भी बताएं। तो है क्या, ता है, फिर शीन है, फिर हा, बेसिकली 2 दफा है। तो ये जो शद होती है ना, ये 2 के लिए ही आती है। जब जिस हर्फ के ऊपर शद हो अरबी में, समझ जाएं कि वो 2 बार है। तो इसका मतलब है, एक हा जो है उस पर जज्म है, जो शीन के साथ पढ़ी जा रही है, तशाह। और दूसरी हा के ऊपर पेश है, जो दाल के साथ पढ़ी जा रही है। ठीक है, हुद, तशहुद। तो ये असल में तरीका होता है शद को समझने का। तो इन दोनों को प्लस किया जा रहा है, तो वो फिर शद के साथ आ गया, एक हा। ठीक है, ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट। तो मुझे अब बताएं कि ये प्रोनाउंसिएशन है तशहुद, बोले जरा, तशाहुद। तशहद। फिर से बोलें। तशाहुद। तशहद। दैट्स ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तशहुद हम लोग सीख रहे हैं, और जब तशहुद की पोजीशन में हम बैठे होते हैं, तो सजदे के बाद हम 3 चीजों का इजहार करते हैं कि ए मेरे अल्लाह, मेरी ये तीनों तरह की इबादतें तेरे लिए हैं, किसी और के लिए नहीं है, कोई शो ऑफ के लिए नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन सी इबादतें हैं, इनको जरा देखते हैं। कौली इबादतें वो हैं जो सब अदा की जाती हैं जुबान से, जिनमें नमाज, जिक्र, तिलावत, दावत व तबलीग, अच्छी बात करना, नसीहत करना, सही रास्ता किसी को बताना, मशवरा देना, अच्छी तजवीज देना, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ जो जुबान से आप अदा कर रहे हैं, दुरुस्त अमल फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, वो इबादत है।
ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے کلی عبادتیں ہیں۔ آگے اگر ہم چلیں تو بدنی عبادتیں، ان کی کچھ مثالیں دی گئی ہیں، جیسے اس میں نماز بھی آتی ہے، فزیکلی ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں، ہے نا، روزہ ہے، حج ہے، تربیت کرنا، مدد کرنا، اس میں بھی ایفرٹ لگتی ہے، کوشش، محنت، ٹھیک ہے، تعلیم، دعوت، تبلیغ کے لیے کہیں جانا، تو وغیرہ وغیرہ، وہ سارے کام جس میں جسمانی طور پہ ہم اپنی ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں، ہم کوشش کاوش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، وہ صلوات میں آتی ہے۔ ویسے عام طور پہ صلوات ہم اپنی دن کی جو 5 نمازیں ہیں، فرض نمازیں یا کوئی بھی نمازیں، نفلی نمازیں سنت جو ادا کرتے ہیں، تہجد کی، ان سب کو بھی صلوات کہتے ہیں نا، تو اس میں بھی ایک بدنی جو ہے وہ عبادت اس میں آتی ہیں۔ لیکن لٹرل میننگ یہ ہے کہ تمام وہ عبادتیں جو بدنی طور پر ایفرٹ کے ساتھ ادا کی جائیں وہ صلوات میں آتی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح طیبات، ویسے طیبہ کا ایک معنی پاکیزہ بھی ہوتا ہے، پاکیزگی بھی، ہے نا، اور یہاں پر جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ مالی عبادتیں، یعنی ہمارے مال سے جو سورسز ہمیں اللہ نے دیے ہیں، کسی بھی فارم میں، بینک بیلنس ہے، ہمیں اللہ نے جو بھی دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے، اس میں سے اللہ کے رستے میں خرچ کرنا۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارا خود کا ہے نہیں، وہ دیا ہی ہمیں اللہ نے ہے، تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں سے اللہ کی خاطر دینے میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ پرابلم، مشکل عبادت یہی لگتی ہے سب کو، ٹھیک ہے، تو یہ بڑی ضروری ہے، رائٹ۔ تو یہاں پر ہمیں معلوم ہو گیا، اور ایک اور سوال ہمارے ذہن میں آیا کہ اگر میں یہ ہر نماز میں یہ 3 عبادتوں کا ذکر کر کے کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے لیے ہیں، تو کیا میں یہ عبادتیں کر بھی رہا ہوں؟ یہ ہے سوال جو ہمیں سوچنا چاہیے۔ کتنی عبادتیں ہیں جو اب تک زندگی میں نے کی ہیں، قولی، کتنی بدنی، کتنی مالی، اور پھر اللہ کو کتنا سوچ کے کی ہیں، کیونکہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ ذہن میں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو شو آف کرنے کے لیے کر رہے ہیں، نیت میں ہونا چاہیے کہ ہم صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو سوچیں کہ ایسی عبادتیں کی بھی ہیں، اگر نہیں کی تو فوری طور پہ ان عبادتوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، اس کو دھیان سے سنیں، یہ پورے QC1 میں ہم کبھی بھی اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا 70,000، 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ تو خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ کسی سے کراتے ہیں، نہ بدشگونی لیتے ہیں، صرف اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی ان کی ایک خاصیت یہ بتائی، یہ جھاڑ پھونک نہ کرنا، بدشگونی، اس میں بہت سارے معاملات آتے ہیں، جو جادو تعویذ، ایسے معاملات بھی آتے ہیں، شرک کے بہت سارے رستے ہیں جو آج کل لوگوں کو نارمل لگتے ہیں، ان سے جو بچنے والے لوگ ہیں۔ اور یہ جو کچھ ایسی بدشگونی کے ماننے والے بھی ہوتے ہیں نا، جیسے ایک چھوٹی سی مثال میں دیتی ہوں کہ کالی بلی گزر گئی تو یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو دنیا کی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری تقدیر ان کی وجہ سے بن رہی ہے، تو یہ غلط ہے۔ اس سے بچنے والے لوگ، فار ایگزامپل میں آپ کو بتا رہی تھی، تو اس طرح بہت سی اور چیزیں ہیں، جیسے اب ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں، نظر کا معاملہ ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، نظر لگ جاتی ہے، اب اس کو نظر اتارنے کے 100 طریقے ہیں، ان میں سے ہمارے لوگ مسلمان ہوتے ہوئے آدھے طریقے تو انڈیا سے لیے ہوئے یوز کر رہے ہیں، کوئی جاپان سے آئے ہوئے طریقے یوز کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارے دین نے تو نہیں سکھایا کہ آپ مرچیں لے کر ان کو جلائیں اور یہ کر دیں اور وہ کر دیں، چینی لے کے توے پہ جلائیں اور پورے گھر میں اس کا دھواں پھیریں تو نظر چلی جائے گی۔ تو یہ چیزیں ہم نے جو ہے نا خود ساختہ بنا لی ہیں، اینی ویز یہ ایک لمبی بحث ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو یہ چیزیں ان چیزوں سے بچتے ہیں، اور وہ مطلب خاص لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، 70,000 ہوں گے۔ ابھی اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ جس محفل میں یہ بات فرما رہے تھے، آپ کے کمپینین صحابہ کرام وہاں موجود تھے، ان میں سے ایک تھے عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ، وہ فوراً سے کھڑے ہوئے، باقی کلاس تو آرام سے سن رہی تھی، کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں کلاس میں، ہے نا، وہ جلدی سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے لیے دعا فرمائیں کہ ان 70,000 میں سے ایک میں ہو جاؤں، بغیر حساب کتاب کے میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا تم ان میں سے ہو۔ جب یہ دیکھا پوری کلاس نے، تو جو کلاس میں سوئے ہوئے تھے، لیزی تھے، انہوں نے کہا یہ تو اتنی اتنی بڑی خوشخبری مل گئی ہے عکاشہ کو، تو وہ فوراً سے ایک اور صحابی بھی کھڑے ہوئے، باقی لوگ بھی باری باری کہنے لگ گئے کہ ہمارے لیے بھی دعا کر دیں، میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ آپ نے فرمایا عکاشہ اس معاملے میں تم پر سبقت لے گیا۔ سبقت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہل آگے کر بڑھ لیا، گیا۔ آگے بڑھ گیا، نمبر پہل 1 کر ہو گیا۔ لیا، ویری نمبر گڈ، 1 ہو گیا۔ بالکل، یعنی انہوں نے پہل کر لی اور انہوں نے جو اچیو کرنا تھا گول وہ ان کو اب مل چکا ہے۔
तो इससे हमें इतना बड़ा सबक मिलता है कि ये जो हम कहते हैं ना कि हो जाएगा, इट्स ओके, बहुत इजी ले लेते हैं, हम अपने कीमती वक्त गंवा देते हैं। तो जब कहीं मौका मिले फौरन से उसका अमल को कर लेना चाहिए। ये नहीं हाँ मैं कल करूंगा, कल से ये काम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। आने वाले वक्त का कुछ पता नहीं होता, वो नहीं, जरूरी नहीं है कि वैसा ही वक्त दोबारा नसीब में हो। और पहल करने की वैल्यू कितनी ज्यादा है, एक तो ये कि सब लोग एक काम कर रहे हैं, नेक उसमें शामिल होना वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहल करना, उसका जो जिसने उस नेकी का उस अच्छे काम का आगाज किया होता है ना, उसका जो अजर है ना वो किसी का नहीं होता। ठीक है, यानी सारी चीजें अपने सर पर लेकर जो और जिम्मेदारी लेके पहल करता है, तो इसलिए इसमें देर नहीं करनी चाहिए। तो आप देखें उकाशा बिन महसन को कितना कितना बड़ा फायदा हो गया, है ना। तो ये बात हम भी जेहन में रखेंगे और आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, तीन इबादत का जिक्र करने के बाद फिर हम कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, सलाम हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने माइक बंद रखें, सिर्फ सर बात का जवाब देते हुए ऑन किया करें, क्योंकि थोड़ी बहुत चिट चैट या घर से आवाज आती है तो सब डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, ओके। तो नबी के लिए हम क्या दुआ मांग रहे हैं? सबसे पहले सलामती की। सलामती क्या होती है? नापसंदीदा चीजों, बातों, तकलीफ वाली चीजों से महफूज रहने को सलामती कहते हैं। कहते हैं सलामत रहिए, सलामत रहो। ठीक है, और उसके बाद है अलई का, ये आप देख रहे हैं, तो हमने अला का लफ्ज पढ़ा था पिछले वेनसडे को। जो 9 हरूफ पढ़े थे उनमें से एक अला था, उसकी मिसाल क्या थी? अस्सलाम अलैकुम। तो अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर। तो अलैका तुम पर अभी या आप पर, ठीक है, तो ये वो अलैका है आप पर, राइट। उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद है अय्युहन नबी। तो ये जो लफ्ज है अय्युहा, आप देख रहे हैं, राइट। यहाँ कुछ और 3 अंदाज में इनको लिखा हुआ है, या अय्युहा या अय्युहा, मतलब ये तीनों अंदाज में लफ्ज कुरान मजीद में आया है मुख्तलिफ जगहों पर। तीनों का मतलब यही होता है कि आप किसी को मुखातिब कर रहे हो, ए, जैसे किसी से बात करने लगते हो, मुखातिब करने के अल्फाज हैं ये तीनों, ठीक है। और उसके बाद है अन नबी, नबी अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस पूरी यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि सलाम के साथ भी अलिफ लाम है, नबी के साथ भी अलिफ लाम है, तो इसका मतलब है ये भी इस्म की कैटेगरी में आते हैं। नबी की 2 जमा लिखी हुई हैं, पहली जमा क्या है? नबीयूना, नबीयू और अंबिया। वाव तो नबीयून, उनके साथ है। नबीयून, वेरी गुड। हाँ, दूसरी जमा क्या है? अम्बिया। अंबिया, अंबिया। अंबिया। तो अंबिया। हमने इसमें से कौन सी जमा बनाने का तरीका सीखा है पिछले लेसन्स में? हमने ऊपर वाला वाव नून वाला। नबीयून। वेरी गुड, वेरी गुड। नबीयुन। यानी वाव नून और या नून से जो जमा बनती है मुजक्कर की, हमने वो सीखा है, नीचे वाला तरीका नहीं सीखा। इससे पता चला कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ठीक है, यानी अभी हमें बहुत कुछ सीखना है इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला हमें हिम्मत तौफीक दे, मोहलत दे के हम अपनी जिंदगी में इतना सीख लें, इतना कर लें कि दुनिया से ऐसे ना चले जाएं, अल्लाह को राजी करके जाएं इंशाल्लाह। तो अभी ये एक तरीका है जमा बनाने का, इसका मतलब है एक और तरीका, और तरीके भी आएंगे जो हम अगले कोर्सेज में पढ़ेंगे। इस कोर्स में हम उनकी डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो सादा मैं ये कह देती हूँ, नबी यून आसान तरीका, इसको जमा सालिम कहते हैं। आपने कभी सालिम मुर्ग खाया होगा, पूरा का पूरा मुर्ग पकाया होता है, उसको सालम मुर्ग कहते हैं, सालम बकरा, है ना। अरब के एरियाज में बहुत जगहों पे, हमारे पाकिस्तान में भी कई जगहों पे बनता है। तो सालिम जमा है ये, जिसमें पूरा का पूरा वाहिद जो है ना वो जमा में आ जाता है टूटे बगैर। नबी पूरा का पूरा आया हुआ है, आप देख रहे हैं, उसके आगे वाव नून आ रहा है। लेकिन जो दूसरी वाली जमा आप देख रहे हैं उसमें वाहिद आमतौर पर पूरा का पूरा नहीं आता, टूट फूट जाता है, उसके बीच में शुरू में कहीं ना कहीं और हुरूफ आ जाते हैं, जैसे नबी से अंबिया बन गया। तो इसको जमा मुकस्सर कहते हैं या टूटी फूटी जमा कहते हैं। इसके तरीके हमको हम बाद में, इससे अगले कोर्स में सीखेंगे रमजान के बाद। ठीक है, ओके जी। तो हमने फौरी तौर पे 3 इबादतों का जिक्र किया, जरा ध्यान करें। 3 इबादतें, ए अल्लाह, ये तीनों इबादतें जो हम करते हैं और आगे करेंगे, ए अल्लाह वो सिर्फ तेरे लिए हैं, हम किसी और के लिए नहीं कर रहे, लोगों को दिखाने के लिए, नेक अपने आप को शो ऑफ करने के लिए नहीं कर रहे, तेरे लिए हैं। और फिर फौरन अपने नबी पे दुआ क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि ये जो तीनों इबादतें, ए अल्लाह हम तेरे लिए कर रहे हैं, ये तेरे प्यारे नबी ने हमें सिखाई हैं। उन्होंने ही दुनिया में आके प्रैक्टिकल करके बताया है
کہ کیسے قولی عبادتیں کرنی ہیں، کیسے بدنی عبادتیں کرنی ہیں، اور کیسے مالی عبادتیں کرنی ہیں۔ تو وہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے فوراً دعا کریں کہ سلامت رہیے آپ اے نبی، آپ کی وجہ سے ہم نے یہ سیکھا ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد دعا بھی جاری ہے، پھر نبی کے لیے ہم دو اور چیزوں کی دعا کرتے ہیں، وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں اس کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تین ٹکڑے دیکھیں، واہ، رحمت اور اللہ، تین لفظ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ واہ کا مطلب اور ہے، رحمت رحمت، اللہ اللہ کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت کی دعا، پہلے سلامتی کی دعا مانگی، اب رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ پھر آگے ہے وہ برکاتہ، بتائیے ذرا یہ کتنے ٹکڑے ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی 3 میں ہے۔ پہلا ٹکڑا بتائیے، واہ، دوسرا، برکا، برکاتو مطلب پورا آ گیا، آتو بھی جمع میں آ جاتا ہے، اور ہو یہ ہماری ضمیر آ گئی جو ہے گی ضمیر ویری گڈ، یہ جو آپ ہم نے جو اسم کا ٹیبل ان پر پڑھا تھا، ہو ہم، رب ہم، یہ وہ والا ہو ہے۔ جی اور برکتیں اس کی، یہ تین حصے ہیں، ہوا برکات، برکہ، برکت ان کی جمع برکات، زیادہ برکتیں، یہ مونس جمع کا انداز ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہو اس کی، یعنی اس کی کس کی؟ رب کی جو برکتیں ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہاں نیچے آپ واحد جمع دیکھ رہے ہیں، برکہ یا برکتن، ایک برکت کی بات ہو رہی ہے، جمع کیا ہے؟ برکات برکا، برکاتن برکاتو، برکاتن، ٹھیک ہے جی۔ اگر میں کہوں برکتن تو جمع کیا ہوگی؟ ب- برکات برکاتو، برکاتن آتو آ جائے نا، برکاتن ایکسکیوز می، میں نے کہا برکتن، برکاتن برکاتو ہو جائے گی، آتو، برکات اگر واحد کے آخر میں نے دو پیش لگایا ہے تو آپ جمع کے ہاں آخر میں بھی دو پیش برکاتون ہو لگائیں، جائے گی، جی جی بالکل صحیح، برکاتن برکاتون ہوگی، اوکے اوکے۔ آدمی چھوڑ آئے اگر گی میں اس آپ کے سے کہوں برکتن اور برکتن تو جمع کیا ہوگی؟ جب ہوگی برکاتن برکتین برکاتین ہی ہوگی، دونوں میں برکاتین اگر آخر میں دو زبر یا دو زیر ہو، دونوں صورتوں میں جمع کے آخر میں دو زیر آئے گی، نصب اور جر میں یس، برکتن ہو یا برکتن ہو، جمع میں برکاتن آئے گی۔ یہ کانسیپٹ ہم نے مونس والے لیسن میں پڑھا تھا، تو آپ اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں اگر ڈیٹیل آپ نے سمجھنی ہے، ریکارڈنگ آپ کے پاس موجود ہے۔ تو ہم نے جو تین عبادتوں کا اوپر ذکر کیا، ہم اس کے فوراً بعد اپنے نبی پر جو ہے وہ دعا بھیجتے ہیں کہ تین چیزوں کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ انہیں سلامت رکھ، ان پر تیری رحمت ہو، ان پر تیری برکتیں ہوں، کہ ان کی وجہ سے ان کی پوری زندگی کی ایفرٹ تھی کہ ہم نے جانا کیسے یہ عبادتیں کرنی ہیں، تو ان کا یہ حق ہے اور ہم ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور نماز کا اتنا امپورٹنٹ حصہ ہے یہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر پتہ یہ ہونا چاہیے جو تین دعائیں ہم مانگ رہے ہیں وہ ہوتی کیا ہے؟ سلامتی کیا ہے؟ کہ اللہ آپ کو حفاظت میں سلامت رکھے، محفوظ رکھے۔ رحمت ہوتی ہے کہ کسی پر رحم کرنا، پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ محبت سے، بغیر کسی غرض کے کسی کا خیال رکھنا، محبت سے کسی کا خیال رکھنا، اور اس لیے نہیں کہ میں رکھ رہا ہوں تو کل کو وہ بھی میرا یہ احسان ہے پورا کرے، وہ احسان ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن رحمت جو ہے اس میں آپ واپس بدلہ نہیں مانگنا چاہ رہے، آپ یہ نہیں چاہ رہے وہ بھی واپسی میں کچھ کرے آپ کے لیے، اللہ کی خاطر محبت سے آپ کسی کا خیال رکھ رہے ہو، اس کو کہتے ہیں رحمت، ٹھیک ہے۔ اور برکت کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، برکت کے اندر تو ساری دعائیں آ جاتی ہیں، یعنی اللہ کا ہر انعام، ہر فضل، ہر خیر، ہر بھلائی آپ کو مل جائے، ہمیشہ آپ کے پاس رہے اور اس میں اضافہ ہوتا رہے۔ تین حصوں میں برکت کا معنی ہوتا ہے، یعنی اللہ کے کا کرم آپ کو مل جائے، آپ کے پاس ہمیشہ رہے اور بڑھتا رہے، زیادہ ہوتا رہے، انکریز ہوتا رہے۔ تو جب ہم کسی کو برکت کی دعا دیتے ہیں، آپ کے رزق میں برکت ہو، مال میں برکت ہو، کسی بھی چیز میں، علم و ایمان میں برکت ہو، تو اس کا مطلب ہے اس میں سارا کچھ ہی آ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد تشہد کا تیسرا حصہ، ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو یہاں پر پھر دعا ہی کنٹینیو ہو رہی ہے، لیکن یہ دعا کس کے لیے ہے یہ اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے السلام، سلام ہو، سلامتی، الف لام کے ساتھ، یعنی یہ اسم ہے۔ تو جیسے سلامتی ہم نے اپنے نبی کے لیے مانگی، اب یہاں پر پھر اسی سلامتی کی بات ہو رہی ہے، لفظ ریپیٹ ہو رہا ہے، علینا، ہم پر۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں لیفٹ سائڈ پہ آپ کو ایک ٹیبل نظر آ رہا ہے، یہ وہ ٹیبل ہے جو ہم نے پچھلے وینسڈے کو گرامر کے حصے میں پڑھا تھا۔ اعلی، عین لام، لام پر کھڑی زبر اور یا، اعلی جو بنتا ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے پر، کسی چیز پر،
تو یہ حرف ہے، اس کو ہم نے اٹیچڈ پروناؤن یعنی ضمائر متصلہ کا جو ٹیبل ہم نے پڑھا تھا، ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، اس کے ساتھ جوڑا تو بنا علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ آپ اس کورس میں اشاروں کے بغیر تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے نا گرامر، تو جب آپ اشارے کرتے ہیں آپ کو اردو کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، آپ کو خود سمجھ آ جاتا ہے اس کا معنی کیا ہے۔ تو جتنے لوگ کلاس میں ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو وہ اشاروں سے پڑھیں، ورنہ آپ کو آگے جا کے بہت مشکل ہوگی پھر، ٹھیک ہے؟ تو سب سے آخری ہے علینا، ہم پر، ہم پر، یہ وہ ہے علینا۔ اس کے بعد کیا ہے جی؟ اس کے بعد ہے وعلا، یہ وہی اعلیٰ ہے، یہ وہی اعلیٰ ہے جو یہاں نا کے ساتھ ملا تو کھڑی زبر زبر میں تبدیل ہو گیا تھا، یہ وہی اعلیٰ دوبارہ آ رہا ہے، ہم پر کن پر؟ اور اوپر یا اور پر۔ اس کے بعد بات ہو رہی ہے عباد اللہ الصالحین، عباد بندے، کس کے بندے؟ اللہ ہی، اللہ کے۔ اس کے بعد کون سے بندوں کی بات ہو رہی ہے؟ ان کی ایک صفت بھی بتائی جا رہی ہے، الصالحین، جو نیک ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں الف لام یہاں بھی صالحین کے ساتھ بھی آ رہا ہے، سلام کے ساتھ بھی الف لام آ رہا ہے، رائٹ؟ تو یہاں آپ نے دیکھا جیسے ایک بہت ہی جو ہم کہتے ہیں بیسٹ اور خوبصورت نام ہے اسلام میں، ان میں سے ایک عبداللہ ہے، جو ہم اپنے بوائز کا نام بھی رکھتے ہیں، ماشاءاللہ مسلمان فیملیز میں رکھا جاتا ہے بڑی محبت سے، اللہ کا بندہ۔ تو اللہ کا بندہ عبداللہ ہے اور اس کی جمع ہے عباد اللہ، اللہ کے بندے، ٹھیک ہے؟ اب یہ بھی عبد سے عباد بنا، یہ بھی ایک جمع کا طریقہ ہے، ٹوٹی پھوٹی جمع جو ہم آگے سیکھیں گے۔ اسی طرح یہ جو ہے صالحین، اس کے لیے انہوں نے واحد جمع بتایا ہے، صالحن کہتے ہیں ایک نیک مرد کو، اور اس کی جمع بن گئی صالحون، نون آخری والے نون پہ زبر ہے، یہ آٹومیٹیکلی ہے، نہیں بھی لگا تو بھی موجود ہے، صالحون نہ ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اگر صالحن صالحین ہو، وہ بھی ایک مرد کو کہتے ہیں جو نیک ہے، تو جمع یا نون سے بنتی ہے صالحین، یعنی صالحن صالحون، صالحن صالحین، صالحین، یہ وہ جمع ہے جو ہم سیکھ چکے ہیں، جمع سالم، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے پہلے اپنے نبی کے لیے تینوں چیزوں کی دعا مانگی، سلامتی، رحمت اور برکتیں۔ اس کے بعد الحمدللہ ہم اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اپنے نبی کے بعد، کہ اللہ ہم پر بھی سلامتی ہو، ہمیں بھی سلامت رکھ، اور اس کے ساتھ پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی تیرے صالح بندے ہیں اللہ، دنیا میں تیرے نیک بندے ہیں، ظاہر ہے نیک بندوں پر اللہ کا انعام ہوتا ہے، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، تو ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں کی بات کر رہے ہیں کہ ان پر بھی جو ہے وہ سلامتی بھی عطا فرما انہیں بھی۔ تو اس کا مطلب ہے ہم یہ امید کرتے ہیں، ہمیں امید کرنی چاہیے کہ اگر شروع میں نبی کا ذکر ہو رہا ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر میں نیک بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو دونوں اللہ کے پسندیدہ ہیں، ٹھیک ہے؟ درمیان میں ہم اپنا ذکر کر رہے ہیں، تو جب شروع میں اتنی برکت کی بات ہے، آخر میں ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی یہ دعا قبول فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آگے بڑھتے ہیں، رائٹ؟ اور ایک میسج اور مل رہا ہے، اگر ہم بھی صالح بن جائیں، نبی تو نہیں بن سکتے، صالح تو بن سکتے ہیں، اگر ہم بھی نیک لوگوں میں شامل ہونے کی ایفرٹ کریں، نیک کام کرنے کی ایفرٹ کریں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ دنیا میں جتنے لوگ اربوں کروڑوں، جتنے بھی لوگ نماز ادا کرتے ہیں، جب وہ تشہد ادا کریں گے، سب لوگ نیک لوگوں کی، صالحین کی دعا مانگتے ہیں، اگر ہم بھی صالحین میں شامل ہو جائیں، نیک لوگ بن جائیں، نیک بندے، تو اس کا مطلب ہے دنیا میں جتنے مسلمان دعا کیا کریں گے نماز میں، وہ دعا میں، ان کی دعا میں ہم بھی ہوا کریں گے، کتنے فائدے کی بات ہے۔ تو یہ میسج بھی ہمیں مل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آخری حصے میں ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ حصہ ہم پہلے اذان میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور غالباً ہم وضو کی دعا میں بھی پڑھ چکے ہیں، تو اس کی ڈیٹیل میں جانے کی تو ضرورت نہیں ہے، ایک ایک لفظ ہم نے سمجھ لیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور آگے چلتے ہیں، ایک بہت اہم بات بتاتی ہوں، ابھی ہم نے کس گواہی کی بات کی ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ کہا ہے نا؟ یہ ذکر ہم نے اذان میں بھی کیا، یہ ذکر ہم نے وضو میں بھی کیا، سبحان اللہ، اور یہ ذکر ہم نے، ابھی تو ہم نے ثنا نہیں پڑھی ہے نماز کے شروع میں، ابھی ہم وہ سمجھیں گے اگلے لیسنز میں، آئی تھنک لیسن 10 میں، وہاں بھی ذکر کیا، پھر یہی ذکر جو ہے وہ ہم دوبارہ سے تشہد میں کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کتنی بار تجدید ایمان ہو رہا ہے، کتنی بار یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے ایک مسلمان کا، رب کا ایک ہونا تمہارے دین کے لیے سب سے پہلی چیز ہے،
तो ये कितना अहम है, ला इलाहा इल्लल्लाह कितना अहम है, जरा एक वाक्य से मैं आपको बताती हूँ। अरब कंट्रीज में ऑफ कोर्स अरब के लोग जो हैं वो अरबी बोलते हैं, उनकी अपनी जुबान है। ये सच्ची बात है, ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं है। वहाँ के जो इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर्स होते हैं, उनमें से किसी ने बताया कि मैं अपनी कंट्री में सर्विस कर रहा था, और मैंने, जाहिर है डॉक्टर्स हैं तो हम इमरजेंसी वार्ड में बहुत से लोगों की का इंतकाल हमारे सामने होता है। तो बहुत से लोगों को हमने दुनिया से जाते हुए देखा, उनमें से सिर्फ एक या दो लोगों ने कलमा पढ़ा। यानी इतने लोग आते हैं मुसलमान, लेकिन सबको नसीब नहीं हुआ। ठीक है। एक वाकया उन्होंने बताया, एक बूढ़ा आदमी मौत के करीब था, नज़ा का वक्त था, डॉक्टर्स को समटाइम्स आइडिया हो जाता है, तो उनको पता था कि ये दुनिया से जा रहा है। उसका बेटा, उस ज़ईफ शख्स जिसका इंतकाल होने वाला था, उसके पास उसका बेटा भी मौजूद था। और अरब लोग थे, अरबों के लिए तो वैसे ही आसान है। तो वो बेटा भी बाप को तलकीन कर रहा है और सब कलिमा पढ़ रहे हैं कि आप कलिमा पढ़िए, दुनिया से जाने का वक्त है। तो बेटा बार बार कह रहे हैं, और जो बाप है वो बेटे से बात कर रहा है अरबी में। ठीक है, बेटा कह रहे हैं अब्बा जान ला इलाहा इल्लल्लाह कहिए। तो बाप, जिसको अरबी आती भी है, वो जवाब दे रहा है, उसे हवास में है, सारी बातें कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है मुझसे कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। अल्लाह अकबर। जरा अंदाजा लगाइए कि तौफीक का मामला कितना बड़ा है। हम ये कह लें कि हाँ मरते वक्त हम पढ़ लेंगे, तौफीक तभी मिलेगी जब जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह के उसूलों के मुताबिक गुजारी होगी, अपने अमल से साबित किया होगा कि हम माबूद सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, किसी और को नहीं। कितना बड़ा मैसेज है। यानी वो शख्स कह रहा है मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा कलमा, और वो दुनिया से चला गया। वाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम इसके मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारे, और हमारा जिंदगी का जो इख्तिताम है, अगली हकीकी जिंदगी का आगाज है, वो भी अल्लाह के कलमे से हो, अल्लाह की रजा पर हो, इंशाल्लाह। आमीन आमीन। उफ। तो एक इंटरेस्टिंग बात अगर मैं ये कहूँ कि वैसे तो कोई नहीं जानता हम में से किसने कब जाना है, कौन पहले चला जाए कौन बाद में, किसके पास वक्त कितना कम है, हम में से कोई नहीं जानता। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मुझे मालूम है कि हम में से कोई कोई भी एक सिस्टर, चलो मैं कह लूँ या अपनी बात कर लूँ कि मैं हम किस टाइम दुनिया से जाएंगे, मुझे मालूम है। वो कैसे मालूम है? या तो फजर और जोहर के दरमियान हमने दुनिया से जाना है, या जोहर और असर के दरमियान, या असर और मगरिब के दरमियान, या मगरिब और इशा के दरमियान, या इशा और फजर के दरमियान। इसके अलावा तो कोई वक्त नहीं है। तो हर नमाज में, अजान में कह रहे हैं, वुजू के दौरान कह रहे हैं, वुजू के बाद, और नमाज में कितनी दफा रिपीट हो रहा है। जब हम ये जिक्र करें ला इलाहा इल्लल्लाह, उस वक्त हम अल्लाह को गवाह बना लें कि ए अल्लाह देख मैं गवाही दे रहा हूं कि तेरे सिवा कोई नहीं है इबादत के लायक। तो बेशक। तू इसी को मेरे हक में मेरा आखिरी आखिरी कलमा कबूल कर ले अगर मेरी मौत आने वाली है। हमें चाहिए ना। तो इससे ये साबित होता है कि हमें जब जब मौका अल्लाह ने दिया है, अजान में, वजू में, नमाज में, उस वक्त ही हम पूरे दिल से समझ कर इसको अदा करें, और अपने अमल से तो जाहिर है साबित करें, ताकि हमारा आखिरी कलमा ये हो, क्योंकि जिसका आखिरी कलमा ये होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। कितनी बड़ी कामयाबी है। तो हमें इस चीज़ को ज़हन में रखना चाहिए। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, आमीन। और फिर आखिर में हम गवाही देते हैं, व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, दो हिस्से, अन्ना के, मोहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे प्यारे नबी का नाम है। अब्दुहु, ये दो टुकड़े होंगे, अब्द बंदे को कहते हैं, हु उसका, हु हम हमने टेबल पढ़ा है, तो ये अब्दुहु उसका बंदा, यानी अल्लाह का बंदा। ठीक है। वा रसूलु हु, तीन लफ्ज जुड़े हुए हैं, वा और रसूल, रसूल हु उसका। तो जैसे अब्दुहु उसका बंदा, इस तरह रसूल हु उसका रसूल। तो फिर आखिर में तशाहुद के हम ये गवाही देते हैं कि मोहम्मद जो है वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। तो आप देखें कि नमाज के तशाहुद में, पांचों अजानों में, पांचों इकामतों में, इकामत होती है, रोजाना तकरीबन 25-30 बार हमें ये सुनाया जा रहा है कि तुम भटक मत जाना वरना नुकसान हो जाएगा। और हमारा फिर भी ध्यान नहीं है, और अगर सुन भी रहे हैं तो हमें पता ही नहीं कि हम क्या सुन रहे हैं। तो कितना जरूरी है इसको समझना। ठीक है। सो और 10 बार हमसे ये शहादत के अल्फाज कहा जाता है, दोहराए जाते हैं हमारी तरफ से। तो क्या हमें बताया जाता है कि तुमने गवाही देनी है, सिर्फ अपने तक ना रखो, दीन को आगे स्प्रेड करना है। इसलिए सीखना और सिखाना दोनों काम जरूरी हैं। अल्लाह करे कि आप लोग जो सीख रहे हैं, मैं भी, हम इसको इस तरह से सीखें और फिर आगे सिखाएं भी। अल्फला भी इवन हेल्प आउट करता है, ट्रेनिंग करता है, आप इसी कोर्स के टीचर बन सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा तशाहुद के तीनों हिस्सों को हमने
कितने अच्छे से स्टडी किया। पहले हिस्से में 3 इबादतों का जिक्र, दूसरे हिस्से में नबी के लिए 3 दुआएं मांगी, तीसरे हिस्से में हमने अपने लिए दुआ मांगी और सालिहीन के लिए दुआ मांगी, और चौथे हिस्से में 2 गवाहियां दी, जिनमें एक अल्लाह के वाहिद माबूद वहदान होने के बारे में है, और दूसरी मोहम्मद के बारे में कि वो कौन है। उनका बेहतरीन तारुफ ये है कि वो अल्लाह के बंदे हैं, स्लेव अल्लाह के, और उसके रसूल हैं। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत जो है वो तारुफ है। ये जिक्र करते हैं तो हमारा तशahहुद पूरा होता है। और जरा इमेजिन करें, जिंदगी में अब तक हमने जितनी नमाजें पढ़ी हैं, इतनी जिंदगी गुजार बैठे हैं हम, वो हम कितने तेजी से पढ़ते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि तशahहुद में है क्या। जब हमें पता ही नहीं होता तो हमें वैल्यू कैसे पता चलेगी, हम मोहब्बत से कैसे पढ़ेंगे, असर जिंदगी पे असर कैसे होगा। अब जब आप तशahहुद पढ़ेंगे आज से, तो मैं उम्मीद करती हूँ उसको फील करके पढ़ेंगे, और अपना एक्सपीरियंस भी जरूर हम जो है वो शेयर करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। हमने मुतालिया किया तसव्वुर और एहसास के साथ, और दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला जो चीज़ें पॉइंट्स हमने समझे हैं उसकी उनमें अमल पैरा होने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और हम एहतसाब करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट तशahहुद के हैं जिन पे हम अमल नहीं कर रहे थे पास्ट में, तो फ्यूचर का आने वाले वक्त का प्लान बनाते हैं और दूसरों को इसके बारे में इंशाल्लाह तबलीग करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, पॉकेट बुक हमारे पास है, उस पे अगर आप तशahहुद का लेसन देखिए, ये देखिए कि पॉकेट बुक है हमारी। आप में से बहुत से लोग इस हफ्ते बुक्स मंगवा चुके हैं, बहुत से लोगों ने पिछले हफ्ते मंगवा ली थी, ऑनलाइन भी बुक्स आपके पास हैं। तो इसमें जो है ये जो कार्ड है, इसमें आप देखते हैं इस तरह से इसको पॉकेट बुक बना सकते हैं, पॉकेट में रख भी सकते हैं, हैंग कर सकते हैं, कहीं भी आप इसको मेन जगह पे रखें। तो यहाँ जब आप देखते हैं लेसन 8, उसमें लफ्ज लिखे हुए हैं तहियात और सलावात, सारे एक एक बार लिखे हुए हैं, मेन मेन लफ्ज, ताकि आप यहाँ उनके मानी रिवाइज कर लें तो बड़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और आज का दूसरा पॉइंट जो है वो बहुत ही तशahहुद के साथ जुड़ा हुआ है, उसको हम देखते हैं, फिर हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, ठीक है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ, उसको कहते हैं दुरूद। सिस्टर्स, आई रिक्वेस्ट कि जिनके माइक ऑन है प्लीज अपने माइक्स बंद रखें, बिला जरूरत माइक बंद ना करें, ऑन ना करें, आई हम्बली रिक्वेस्ट, क्योंकि जरूरत नहीं है, जब कोई बात हो तो उस वक्त आप ऑन किया करें, ठीक है। ओके जी। तो दुरूद किसको कहते हैं? दुरूद, दरूद नहीं होता, दुरूद होता है, दुरूद। दुरूद कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में दुआ मांगने को, ठीक है। तो और बहुत से दुरूद के अल्फाज हैं, बहुत अंदाज हैं, लेकिन जो सबसे अफजल हम कहेंगे वो दुरूद इब्राहिमी है, इसलिए क्योंकि वो नमाज का हिस्सा भी है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम तकरीबन 1500 साल बाद, तकरीबन नबी के आने के बाद, हजारों मील दूर अरब से मुसलमान हैं। तो वो कैसे हैं? ऑफ कोर्स अल्लाह के फजल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों की वजह से हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी दीन को सिखाने में, क्या क्या मुश्किलात सही, हम लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाया कि कैसे दीन पर चलना है। उनकी एक एक वाक्य को याद करें, आई मीन हाउ मच उन्होंने सफर कितना किया, इंग्लिश वाला सफर कह रही हूं मैं, राइट। कितना कुछ फेस किया, कभी ताइफ के लोग जो है वो पत्थर मार रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, एहसास करना भी तकलीफ दे है बहुत इस चीज का। अल्लाह के नबी, क्या उनकी शान है, उसके बावजूद उनके साथ ये हो रहा है। आप देखें, उन्होंने उसको भी सहा, उनके लिए बद्दुआ तक नहीं की। एक खातून के बारे में आता है रिवायात में कि वो आप गुजरते थे और वो कूड़ा फेंकती थी। अल्लाह अकबर। हमारी तरफ कोई इस तरह से बात कर लेना तो हम बर्दाश्त नहीं करते कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, कोई थोड़ा सा कुछ कह दे। आप जिनको पता है कि मेरी अल्लाह ने मुझे क्या शान दी है, दोनों जहान मेरे लिए हैं, उसके बावजूद वो उफ नहीं कह रहे उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने पेशेंस सिखाना था हमें, उन्होंने बताना था कि अखलाक कितने इंपॉर्टेंट हैं। कितनी बड़ी बात है। बहुत सारे मैसेजेस और भी दिए उन्होंने। तो उन्होंने एक बेहतरीन इंसान बन के दिखाया, उनसे बेहतरीन कोई है ही नहीं, ना कोई था ना कोई आएगा। द परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है वो, सुभान अल्लाह। तो ये तो छोटी छोटी मिसालें हैं, एक एक जिंदगी का हिस्सा देखें, हर चीज को उन्होंने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी हमें दीन सिखाने के लिए। अब दुनिया में जब हमारे लिए कोई कुछ अच्छा करता है तो हम क्या करते हैं, मुझे बताएं। कोई फ्रेंड हमारे लिए कुछ करे, फैमिली मेंबर कुछ हमारे लिए अच्छा करे, तो हम उसको थैंक यू करने के लिए क्या करते हैं आमतौर तोहफे पर? देते हैं, तोहफे तोहफा देते देते हैं। हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं, उसको दुआ देते हैं, दुआ दे दुआ सकते देते हैं, हैं, और उसकी दावत पे इज्जत बुलाते हैं, ये भी कर सकते हैं बढ़ाए। ना,
कहते हैं आप हमारे साथ आके खाना खाइए, आज दोपहर का खाना, रात का खाना हम आपके लिए तैयार करेंगे। ऐसा ही है। तो इस तरह की चीजें हम करते हैं। सुभान अल्लाह। अगर हमारे लिए मुमकिन होता तो यकीनन हम ऐसा करते। अगर हमारे नबी मौजूद होते, सहाबा कराम की तरह हम लोगों को अगर वो वक्त मिलता, तो ऐसे ही होता। आज के दौर में शायद हम सोचते हमारी हैसियत के मुताबिक हम एफर्ट लगा देते कि दुनिया का सबसे ब्रांडेड परफ्यूम हम अपने नबी को की तोहफा दें। हम कोई बहुत बेहतरीन ब्रांडेड चीजें जो है वो नबी के लिए खरीदें। यही कर सकते थे ना हम। या हम बहुत बेहतरीन खाने का एहतमाम करें। और ये तो मुमकिन नहीं है। तो अल्लाह ने इतना एहसान किया है कि अपने नबी को और हमें सिखाया है और हमें तलकीन भी की है कि वाकई उनका हक है कि उनके लिए दुआ की जाए। उनकी बहुत कुर्बानियां हैं तुम्हारे लिए। तो तुमने जो है वो क्या करना है, जब तुम उन्हें थैंक्स कहने लगो तो तुम उनके ऊपर दुरूद भेजो। यानी अल्लाह का ये एहसान है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी दुआ के वो मोहताज तो है नहीं। पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है ना। अजर तो उनको मिलना ही है, उनके लिए तो अल्लाह अल्लाह की रजा उन्हें मिल चुकी है इंशाल्लाह, चाहे हम दुआ करें या ना करें। सुभान अल्लाह। हमारी मोहब्बत है कि हम नबी के लिए दुआ करते हैं और मैनर्स हैं और ज़रूरी है। लेकिन असल में हमारे लिए ऑनर है, उसका अजर भी हमें ही मिलता है। दुरूद दुआ उनके लिए मांग रहे हैं और रिवॉर्ड हमें मिलता है। तो अल्लाह ने बड़ा एहसान किया है। तो हदीस है कि जो कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दुरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 मर्तबा रहमत फरमाएंगे। इसी तरह कुरान मजीद में है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये नहीं कि अल्लाह ने कहा तुम मांगो। अल्लाह कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, कितनी तकरीम कर रहे हैं नबी की। अल्लाह खुद दुरूद भेजते हैं, अल्लाह के नबी फरिश्ते। तो वो काम जो वो कर रहे हैं वो अगर हम करेंगे तो कितने ऑनर की बात है। सुभान अल्लाह। तो आइए हम देखते हैं खूबसूरत अल्फाज और फिर हम इनको, पहले मैं रिसाइट करती हूँ फिर हम इनको समझते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुभान अल्लाह। तो आपने देखा कि इसमें जो है ना वो ज्यादातर लफ्ज जो हैं वो एक जैसे हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, सिर्फ चंद लफ्ज जो हैं वो हमें देखने हैं जो नए होंगे, बाकी एक जैसे हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं वो कौन से हैं। ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं ये सल्ली, तो दूसरे हिस्से में आ रहा है बारिक। ठीक है। इसी तरह यहाँ आ रहा है सल्लई था, तो दूसरे हिस्से में आ रहा है बारक था। इसके अलावा कोई फर्क है दोनों में? बताएं, कोई और फर्क है? जी सिस्टर्स। नहीं है तकरीबन। नहीं है। वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि पहला हिस्सा समझ लेंगे तो दूसरा हिस्सा खुद ही समझ आ जाएगा। सिर्फ इन दो लफ्जों को, सल्ली सल्लई था, बारिक बारक था, इनका फर्क है। अदरवाइज कोई और चीज ऐसी नहीं है जो हमें सीखनी हो। तो बहुत जल्दी हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह ताला। ओके। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, ये जो लफ्ज है अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा, इसको के कितने टुकड़े होंगे? तो अल्लाह और हुम। नहीं, ये हुम नहीं है, ये हुम्मा है। इसके टुकड़े नहीं अच्छा होते। हुम। अच्छा ठीक है, ये सही। एक ही लफ्ज रहेगा, याद रखिए। सही अल्लाहुम्मा, हाँ। ए अल्लाह। हम्म, ठीक है, मुखातिब किया जा रहा है, हम अपने रब से बात करना चाह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि ए अल्लाह। तो ये एक ही होता है। ठीक है, इसको भूलना नहीं है आपने। उसके बाद है जनाब, सल्ली। आप देख रहे हैं सल्ली, तो सल्ली सलात से है। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि सलात की जमा है सलावात। बदनी इबादतें, एक बदनी इबादत को सलात कहते हैं। तो सल्ली वहां से है, तो इसका आम मतलब तो होता है नमाज, बदनी इबादत या नमाज अदा करना। पता है ना हमें सलात नमाज को कहते हैं। लेकिन आज हम ग्रामर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हरूफ होते हैं ना, हरूफ हमने पढ़े थे ना, इसम फेल हर्फ अला मिन फी, ये सारे हरूफ हैं बहुत सारे। हमने 9 हरूफ पढ़े थे पिछले बुध को। हरूफ जो है ना, चाहे उनके मानी बस ऐसे होते हैं कि समझ नहीं आती, पर, लिए, में, इस तरह के होते हैं, लेकिन वो बड़े वैल्यू रखते हैं किसी भी जुमले में। उनके आने की वजह से बाकी स्ट्रक्चर, उसका मानी तब्दील हो सकता है। तो इसी तरह सल्ली के साथ कौन सा हर्फ आ रहा है ये बहुत मैटर करता है, इसको भूलना नहीं है आपने। सल्ली के साथ अगर तो आ रहा है लाम जेर ली, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है सूरतुल कौसर से आयत ली गई है।
फसल्ली लिरब्बिका वनहर, बस आप नमाज पढ़िए अपने रब के लिए और कुर्बानी कीजिए। ये सूरतुल कौसर में है। तो वहां जब सल्ली की बात हो रही है उसके साथ हर्फ आ रहा है लाम से ली, सल्ली ली रब्बिका। जब लाम से ली आ रहा है तो उसका मतलब वही है नमाज। लेकिन अगर सल्ली के साथ हर्फ आ जाए अला, तो याद रखें उसका मानी नमाज नहीं होता। अला के आने की वजह से सल्ली का मतलब तब्दील हो जाता है। उसका मतलब हो जाता है दुरूद भेजना या रहमत भेजना नबी के लिए। ठीक है। तो ये आपको उम्मीद है बात कॉन्सेप्ट समझ आ गया सल्ली का। आगे चलते हैं। किन पर रहमत भेजी जा रही है? अला मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ठीक है। और वा अला आली, ये तीन टुकड़े हैं। वा का मतलब और, अला पर, आल किसको कहते हैं? नीचे लिखा हुआ है खानदान वाले, इत्तबा करने वाले। इत्तबा करने वाले मतलब फॉलोअर्स, जो नबी के रास्ते पर चलते हैं, सुन्नत को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, वो भी आल में आते हैं। सुभान अल्लाह। इसका मतलब है आल में हम भी शामिल हो सकते हैं अगर हम नबी की सुन्नत को वैल्यू करते हैं और उस पर अमल करते हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। और ये देखें, अला मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये अला जो है अस्सलामु अलैकुम, इस रेफरेंस से हमने मिसाल से इसको याद रखना है। ठीक है। तो हमने दुआ मांगी दुरूद में कि ए अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। ठीक है। रहमत भेजने का से मुराद क्या है? सल्ली से मुराद है रहमत की बारिश कर ए अल्लाह। ए अल्लाह उन पे मेहरबान हो जा, उनका नाम बुलंद कर, उनके दर्जात बुलंद कर। तो ये दुआ हम मांग रहे हैं। बेसिकली सल्ली के अंदर ये सब चीजें आती हैं। ठीक है। और आल के दो मानी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, यानी आपकी औलाद, अज़वाज मुतहरात, फैमिली यानी, और फॉलोअर्स, इत्तबा करने वाले। ठीक है। फर्मा बरदारी करने वाले, मानने वाले। तो अगर हम दूसरा मानी लें तो हम इस दुआ में शामिल हो सकते हैं। हमें ये जिक्र मैं कर चुकी हूँ। एक लफ्ज होता है अहल। अहल, अहल या अहल कह सकते हैं, उर्दू में ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसका मतलब सिर्फ फैमिली होता है, खानदान। लेकिन आल में खानदान और इत्तबा करने वाले सब आ जाते हैं, पैरवी करने वाले। अब आ रहा है जी अगला जुमला, कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम। कमा का मतलब है जैसे, जिस तरह। तो अब कुरान में आप बहुत सी जगहों पे देखेंगे काफ जबर का आ रहा है, उसका मतलब भी है जैसे। और कमा आ रहा है, उसका मतलब भी है जैसे। तो ये लफ्ज अक्सर आएंगे, आपने याद रखना है, जैसे या जिस तरह। क्या आपने ये जो काफ जबर का है ये पहले पढ़ा है? इस कोर्स में मैंने आपको पढ़ाया है कभी? जी काकुमकुम। जी जी। रब्बू का क्या मतलब था? आपका रब, तुम्हारा रब। आपका रब। आपका रब या तुम्हारा रब। तो यहां पर तो का मानी कुछ और है। ये सवाल आपके जहन में नहीं आया? आ रहा है ना? है ना? जी तो इसको हम जी। देखते हैं। एक इसकी पहचान आपको मैं बता देती हूँ। वो जो का होता है ना, वो लफ्ज के साथ आखिर में जुड़ा हुआ होता है। ये जो काफ जबर का होता है, ये कई जगहों पर आप आगे देखेंगे कुरान में, ये शुरू में आता है। जैसे क माँ से पहले का जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब होता है जैसे या जिस तरह। अगर किसी भी लफ्ज के बाद में जुड़ा होगा तो वो तुम्हारा वाला होगा, रब्बू का, तुम्हारा रब। तो ये दोनों को आपने इस तरह याद रखना है। ठीक है। इंशाल्लाह आगे आगे और प्रैक्टिस भी होगी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं जी, कमा के बाद सल्लैता भेजी रहमत तूने। तो ये जो सल्लैता है, ये आपने एक लफ्ज पढ़ा था पहले लेसन में, हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, तुम, अना मैं। ठीक है। अंता तुम, जैसे अंता तुम थे, इसी तरह सल्लैता तूने भेजी रहमत। सल्ली से सल्लैता, तूने रहमत भेजी। अब ये कैसे बनता है? इसका इस तरह के टेबल जो है वो, तूने रहमत भेजी, एक पास्ट की बात हो रही है रहमत भेजने की। एक ये फेल है, इसम फेल हर्फ में से, क्योंकि कोई काम की बात हो रही है, जमाना भी पता चल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखें, सल्लैता जैसे अंता था, तू, तूने रहमत भेजी। हम अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं जैसे तूने रहमत भेजी। ठीक है। किन पर रहमत भेजी? अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। वा अला आली, और आल पर इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। अब आपके ज़हन में आता होगा कि मोहम्मद तो आखिरी नबी हैं, तो उनके लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र करने की क्या जरूरत है, वो तो फाइनल नबी है ऑलरेडी। तो दो तरह से इसको समझ लें। एक मानी तो ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जैसी इमामत दी है, ऐसा मकाम दिया है, वो हम दुआ करते हैं कि हमारे नबी को भी मिले। सुभान अल्लाह। ऐसा मकाम कि आज के दौर में मुसलमान जो ईसाई हैं, यहूदी हैं, वो मूसा अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। उन्होंने तब्दील कर लिया दीन,
हालांकि उनके दीन में था कि आखिरी नबी आएंगे, उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना है, ये उनके दीन का हिस्सा है, लेकिन और इस्लाम कबूल करना है फाइनली। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, वो हमारे नबी को नहीं मानते, राइट। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, उनकी इमामत ऐसी है कि उनको आज मुसलमान भी इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं, यहूदी भी, ईसाई भी, जितने भी अहले किताब हैं वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं। ये शर्फ उन्हीं को हासिल हुआ है, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं ये जो मेन हम चार नबियों का जिक्र करते हैं, सुनते हैं, है ना। तो हमारे प्यारे नबी भी, है ना, इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से, औलाद से हैं। तो खैर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इमामत की वजह से हम ये जिक्र करते हैं कि दुनिया में इसी तरह सब लोग आपकी इमामत को मान लें, इसलिए हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं कि वैसी रहमत अता कर जैसे तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और उनकी आल को भेजी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और आप तमाम नबियों के सरदार भी हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो इसलिए हम ये जिक्र कर रहे हैं। इन्नका हमीद मजीद। आखिर में फिर हम अल्लाह की तरफ बात करते हैं, दुरूद के आखिर में हम कहते हैं इन्नका, बेशक तू। इन्ना का मतलब है बेशक, याद रखें। हमने इससे पहले अन्ना पढ़ा था, अशहदु अन्ना मोहम्मदन। अन्ना का मतलब क्या था? बेशक के हम। के। अन्ना का मतलब गवाही था था। के। अच्छा, अन। मैं गवाही देता हूं के। वो था हम्म, अन्ना, ये है इन्ना, इसमें जेर है हमजा के नीचे। ठीक है, तो इन्ना का मतलब होता है बेशक, जिसमें कोई डाउट ना हो, कोई शक की बात ना हो, बिलाशुबा, बेशक। का, तू, ये वो वाला का है, रब्बु का वाला, तुम्हारा रब। बेशक तू, इन्ना का, हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं ये। कौन है तू? हमीद है, तारीफ के काबिल। हमद से हमीद है ना। और मजीद, बुजुर्गी वाला। जैसे हम कहते हैं वालिद माजिद, जद्द अमजद, आबाओ अजदाद, यानी हमारे बड़े बड़े जो पेरेंट्स, बुजुर्ग हैं, उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो उनकी शान, उनकी सीनियोरिटी उनकी बुजुर्गी की वजह से होता है। तो अल्लाह की बुजुर्गी, अल्लाह की शान, अल्लाह की सीनियोरिटी तो असल में सबसे ज्यादा है ना, तो इसलिए ये लफ्ज अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल होता है, मजीद, बुजुर्गी वाला। असल शान, बुजुर्गी और सीनियर तो रब है ना, उससे सीनियर तो कोई नहीं है, इसलिए ये परफेक्शन के दर्जे पर जो हो उसके लिए बयान होता है ये लफ्ज। ठीक है, तो आपने देखा कि दो अल्लाह की सिफाती नाम यहाँ जिक्र हो रहे हैं, एक हम हमीद यानी वो तारीफ और शुक्र के लायक है, और एक मजीद जो बुजुर्गी वाला है। तो सुबहान अल्लाह, यहाँ पे हम ये दो तारीफी अल्फाज अल्लाह के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? हम एक तरह का अल्लाह को थैंक्स कह रहे हैं कि ए अल्लाह, तेरी ही वजह से, असल में तो तेरा शुक्र है, तारीफ के काबिल तो तू है, बुजुर्गी वाला तो तू है जिसने हमें ऐसा प्यारा नबी दिया। तो इसलिए दुरूद पर, नबी पर दुआ भेजने के बाद हम फौरन अल्लाह ताला के सामने इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं, असल तो हमीद और मजीद तू है, हम तेरे सामने शुक्रगुजार हैं, है ना, क्योंकि तेरी वजह से हमें ऐसा नबी मिला, वरना हम तो अंधेरों में भटकते रहते, हम कैसे कामयाबी हासिल करते। तो सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत अंदाज होता है। फिर दुरूद के दूसरे हिस्सा बिल्कुल सेम है, सिर्फ दो लफ्ज चेंज हैं, वो हम देख लेते हैं। पहले हिस्से में हमने रहमत की दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अब हम कह रहे हैं अल्लाहुम्मा बारिक अला, ए अल्लाह, पहले कहा था रहमत भेज मोहम्मद पर और उनकी आल पर, अब हम कह रहे हैं बरकत भेज या बरकत अता कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनकी आल पर। तो बारिक होता है बरकत। अब बरकत मैंने आपको आज ही समझाया, बरकत के तीन कैसे मानी है, तीन कौन से अंदाज हैं जिसमें आप मानी याद रखेंगे, याद है किसी को? ये आज खूब ही मैंने तशाहुद में बताया भलाई, आपको। नेमतों का अता करना, और और जो दिया है उसमें इजाफा हो जाए। इजाफा हो जाए, ज्यादती, बिल्कुल। तीन हिस्सों में आप समझेंगे। एक तो आपको अल्लाह की बरकत मिल जाए, दूसरा आपके पास हमेशा रहे, तीसरा उसमें इजाफा होता रहे। तो तीन हिस्से जो हैं, इनको आप समझे तो आपको पता चलेगा कि बरकत का मानी कितना वसी है, सुभान अल्लाह। तो हम अपने नबी के लिए दुआ कर रहे हैं कि आए अल्लाह, तो ऐसी बरकत हमारे प्यारे नबी को और उनकी आल को अता कर, जैसे तूने बारकता, पहले था सल्लैता, तूने रहमत भेजी, अब हम कह रहे हैं बारकता, तूने बरकत अता की। किनको बरकत अता की? ये फालता जो है ये फेल है, और ये टेबल इंशाल्लाह हम आगे 10 11 लेसन्स में पढ़ेंगे। तो बरकत अता की तूने। अब ये देखिए, सल्ली सल्लई था पहले हिस्से में, बारिक बारक था दूसरे हिस्से में। पहले हिस्से में रहमत की दुआ, दूसरे हिस्से में बरकत की दुआ। और फिर हम दोबारा से इन्ना का हमीद मजीद कहते हैं कि अल्लाह, असल में बेशक तू ही है तारीफ के काबिल और बुजुर्गी वाला कि तूने हमें ऐसा प्यारा नबी अता किया, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये जो दुआ है ना, इसको हम सिर्फ 1 मिनट में देखेंगे। ये इजाफी क्यों लिखा हुआ है?
इस एक्सक्यूज इजाफे मी का टीचर। मतलब ये नहीं है कि ये कोई एक्स्ट्रा है, इसकी वैल्यू बहुत है। दो रीजंस हैं, एक तो ये कि नमाज के आखिरी हिस्से में ये कोई फर्ज नहीं है कि यही दुआ एक्सक्यूज मी पढ़ी जाए। टीचर। जी सिस्टर। टीचर मुझे ये बारकता का जो आपने बारह का जो है ना इसमें पीछे जो स्लाइड में, इसका भी आखिर में जो काफ है वो वैसे ही होगा। सिस्टर कौन सा काफ? ये जो सुकून वाला का, ये जी सुकून वाला सुकून काफ है ना, वाला वो तो काफ। सिर्फ बरकत एक लफ्ज है, बरकत के अंदर काफ आता है तो उसको हम अलग तो नहीं करते। ये बारीक अच्छा बरकत अच्छा वाला ठीक काफ है, है। ये एक ही लफ्ज है, इसको ब्रेक नहीं कर रहे। ओके सल्ली एक लफ्ज है, बारीक एक लफ्ज है। ठीक है। ओके। तो इस दुआ को दो तरह से याद रखें, एक तो ये कि इजाफी दुआ इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत सी दुआएं हैं जो कि नमाज के इस हिस्से में अदा की जाती हैं, राइट। ये सिर्फ कोई वाहिद दुआ नहीं है, आपको पता है बहुत सी दुआएं हैं जो इस हिस्से में पढ़ी जाती हैं। दूसरी रीजन, और इसके अलावा लेकिन ये दुआ बड़ी खूबसूरत है, हम पाकिस्तान इंडिया और इन एरियाज में तो ये बहुत ज्यादा पढ़ी जाती है, बड़ी खूबसूरत दुआ है। दूसरा, इजाफी इसको इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो कोर्स है ना, कोर्स वन, ये देखें कोर्स वन का बुक, टेक्स्ट बुक, वर्क बुक मेरे सामने है। ये पूरा बुक सेट है, जिन लोगों ने मंगवाई है उनको ये सब सब चीजें मिलती हैं। तो ये जो कोर्स है ना, कोर्स वन, इसका हिस्सा ग्रामेटिकली ये दुआ जो है इसका हिस्सा नहीं है। तो आप इसलिए कि हम इसके एक एक लफ्ज को की डिटेल इस कोर्स में नहीं समझते, बल्कि हम अगले कोर्सेज में ये वाले पॉइंट समझेंगे। इसलिए इसको हम फिर भी ऐड इसलिए किया है क्योंकि नमाज का हिस्सा है, तो हम लोगों को फिर ये रहेगा कि कोई हिस्सा रह गया है, इसलिए हमने इसको ऐड किया है कि कम से कम हमें बेसिक चीजें तो पता चल जाए ना। इसके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ लेंगे, लेकिन बेसिक पता चल जाए। तो आप जरा गौर से देखें, बहुत से इससे आपको समझ आ भी चुके हैं। ये देखें जरा। सबसे पहले है रब्बी, ए मेरे रब। तो ये रब्बी वो वाला है, रब्बू रब्बू, हम रब्बू का रब्बी, मेरा रब। ठीक है। तो ये रब्बी में जो या था ना, वो इस जेर के अंदर छुपा हुआ है, वो या मौजूद है। लेकिन अरब जो है कभी कभी या नहीं लगाते, वो कहते हैं हमें पता है, हमारी जुबान है, हमें पता है या यहाँ पर है। तो ये रब बी या वाला है बेसिकली, ए मेरे रब। इजअलनी बना दे मुझे, ये हमने वुजू में भी ये लफ्ज पढ़ा था, इजअलनी बना दे मुझे। उसके बाद है मुकीम अस्सलाती, मुकीम कहते हैं कायम करने वाला, किसको? अस्सलात नमाज को। ए मेरे रब मुझे बना दे नमाज कायम करने वाला। फिर देखें व, और मिन, से, जुर्रियती मेरी औलाद, जुर्रिया औलाद को कहते हैं, ये मेरी, रब्बी किताबी, हमने पढ़ा था ना, मेरी किताब मेरा मेरा रब, दीनी मेरा दीन। ठीक है। जुर्रियती मेरी औलाद, यानी मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे। फिर हम कह रहे हैं रब्बना, ए हमारे रब, व, और तकब्बल तू कबूल कर ले, तू कबूल कर, दुआई मेरी दुआ। अब जैसे रब्बी में मैंने कहा था या छुपी हुई है, रब्बी है ये पूरी या के साथ है, लेकिन जेर की वजह से उन्होंने या लिखी नहीं, वो कह रहे जरूरी नहीं है लिखना। इसी तरह दुआई में भी या मौजूद है, मेरी दुआ, वो कह रहे हैं लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप समझ लें कि मौजूद है, मेरी दुआ। ए हमारे रब कबूल कर मेरी दुआ। फिर हम कहते हैं रब्बना, ए हमारे रब, इगफिर ली, बख्श दे मुझे, वा, और ली, लिए, वालिदैया मेरे वालदैन, यानी मेरी वालदा वालिद दोनों का जिक्र हो रहा है, और मेरे वालदैन को। अब ये लफ्ज कैसे बनते हैं ये हम आहिस्ता आहिस्ता अगले कोर्सेज में समझ जाएंगे। वा, और लाम से ली, लिए, अलमोमिनीन मोमिनो, यानी मोमिनों के लिए भी मैं ये दुआ मांग रहा हूँ, मोमिनों के लिए या मोमिनों को। ठीक है। यौमा, दिन, कौन सा दिन? यकूमु, जो जब कायम होगा, अल हिसाब, हिसाब यानी कयामत का दिन। तो ए हम मेरे रब मुझे नमाज कायम करने वाला बना, मेरी औलाद को भी। ए हमारे रब, और कबूल कर मेरी दुआ। ए हमारे रब बख्श दे मुझे और मेरे वालिदैन को और मोमिनों को जिस दिन हिसाब कायम होगा। तो ये अब जेहन में रख के दुआ मांगे तो फिर असल मकसद जो है वो हासिल होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने दुरूद भी मुकम्मल समझ लिया और दुआ को भी देख लिया। हम दुआ मांगते हैं कि अब जो भी एहतसाब करते हैं कि पास्ट में कमी रही है दुरूद को समझने में, इसका सही हक अदा करने में, तो हम इंशाल्लाह उसको पूरा करें, अच्छा प्लान बनाए, दूसरों को बताएं। तो अभी आपके पास ब्रेक है जी 5-7 मिनट्स की, और उसके बाद ये है कि आपके पास कार्ड मौजूद है, आप अगर अवेलेबल है आप अपने कार्ड से लेसन 8 और 9 के जो लफ्ज़ हैं उनको रिपीट कर लें, अदरवाइज आप थोड़ी वॉक कर लें, रिफ्रेश हों, फिर हम ग्रामर के लिए आते हैं। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी
वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आप सबसे राजी हो। आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। लेसन 8 और 9 का बी पार्ट यानी ग्रामर हम आज देखते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या है। टोटल फिजिकल इंटरेक्शन इस कोर्स की एक खास जो है वो हिस्सा है जिसके जरिए से ये कुरान समझना हमारे लिए मजीद आसान हो रहा है। ठीक है, तो टोटल फिजिकल इंटरेक्शन को हम सिंपली TPI कहते हैं। टोटल फिजिकल इंटरेक्शन यानी पूरे वजूद का इस्तेमाल, आंख, कान, आंख, दिमाग, आवाज, हाथ, दिल और सब मिलकर साथी जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये जो सिलसिला जो है ये आसान हो जाता है हमारे लिए। तो इसके साथ हमने करना क्या होता है, जितनी ग्रामर हम पढ़ रहे हैं उसमें सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए दिल से मिलकर। आइए रिपीट करते हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए। बताइए मीन्स इशारे जो सिखाए जा रहे हैं, हाथों के इशारों से जो सीख रहे हैं, उसी की वजह से ये आसान हो रहा है। और जो लोग कहते हैं ना नहीं नहीं ये तो गेम है, हम बगैर इशारों के सीखेंगे, ट्रस्ट मी वो आगे चल के बहुत पछताते हैं, उनको चीजें मुश्किल लगती हैं, कंफ्यूज होते हैं। सो साथ साथ इशारे सीखेंगे आप। ठीक है, तो बताइए यानी इशारों से, जेस्चर से, दिल से, मोहब्बत से और मिलकर। तो ये है जी हमारा TPI, पूरे वजूद का इस्तेमाल सीखने के लिए। और आपको बताया गया था कि कुरान के जो लफ्ज हैं वो या तो इस्म है, नाम या सिफत, या वो फेल होते हैं कुरान के लफ्ज, कोई काम या उसमें जमाना भी, वक्त भी मालूम हो रहा होता है, या वो हर्फ होते हैं यानी इस्म और फेल को जुमले में जोड़ने के लिए, जुमला बनाने के लिए हेल्प करते हैं, वो हर्फ होते हैं। तो इसकी डिटेल हम हर लेसन में पढ़ते हैं, आगे भी पढ़ते रहेंगे। और जरा मुझे, मैं देख लूं कि आप लोग कितने एक्टिव हैं तो मुझे बता दें। आपको बताया गया था कि कुरान के कुल लफ्ज तकरीबन कितने हैं? 78,000। 78,000। ठीक है जी, वेरी गुड। 78,000, 78,000 तकरीबन लफ्ज हैं। और वो लफ्ज या तो इसम है या फेल है या हर्फ है। तो अब तक हमने इसम के हिस्से में क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है ग्रामर में। एक तो हमने दो टेबल पढ़े हैं, हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु। और फिर मोनस था हिया। इसी तरह हु, हम, का, यी, कुम, ना, हा, ये भी था। ये सारा इसम थे, इसम की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा इसम में मैंने आपको बताया था अलिफ लाम और आखिर में तनवीन, खास और आम इसम पढ़े थे। फिर हमने मुस्लिम से मुस्लिमून और मुस्लिमीन बनाया, वो भी इसम है। मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन बनाया, वो भी इसम है। और उसके बाद फिर हमने हरूफ पढ़े थे। हरूफ में 9 ऐसे लफ्ज पढ़े थे जो हरूफ के तौर पे हम प्रैक्टिस करते हैं। उनमें से 2 असल में इसम है, मा और आइंदा। लेकिन अब बाकी ये है कि वो सारे के सारे बाकी हर्फ हैं और वो सारे 9 हर्फ के तौर पे काम करते हैं। और फेल जो है वो इंशाल्लाह आगे आएगा अगले लेसन्स में। आज हम कुछ हिस्सा इसम में से पढ़ेंगे और कुछ हिस्सा हर्फ से पढ़ेंगे। और आज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज थोड़ा सा फेल भी ऐड होगा, माशाल्लाह। तो आज का लेसन तो बड़ा स्पेशल है। कुछ इसम पढ़ेंगे, कुछ हर्फ पढ़ेंगे और कुछ फेल पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि क्या है। तो ये हमने जो है ना पिछले वेनसडे को 9 टेबल बनाए थे, 9 लफ्ज थे, टेबल एक ही था। हु, हुम, का, यी, कुम, ना का, और उसके आगे हा आता है। हु, हुम, का, यी, कुम, ना, हा। उसका, उन सब का, आपका, मेरा, आप सबका, हमारा, और उस औरत का, मोनस का। यानी 6 लफ्ज मुजक्कर के राइट हैंड से, एक लफ्ज मोनस का लेफ्ट हैंड से उसको इशारा हो रहा है। इस एक टेबल के साथ हमने 9 लफ्ज जोड़े थे, तो वो बहुत ही आसान था हमारे लिए। लहू लहुम का मतलब क्या था? उसके लिए, उन सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, आप सबके लिए, हमारे लिए, उस मुअन्नस के लिए। मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिन्हा। उससे या उसकी तरफ से, उन सब से, आपसे, मुझसे, आप सबसे, हम सबसे। अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना, अनहा। इस ये होता है किसी के बारे में, तो इसको भी उससे भी कह सकते हैं, उसके बारे में भी कह सकते हैं। तो उसके बारे में, उन सब के बारे में, आपके बारे में, मेरे बारे में, आप सबके बारे में, हमारे बारे में, उस मुअन्नस के बारे में। फिर हमने पढ़ा था बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा। उससे, उस, उन सब से, आपसे, मुझसे, आप सबसे, हमसे, उस मुअन्नस से या उसके साथ। तो मुख्तलिफ मानी होते हैं हरूफ के। फीही, फीहिम, फीका, फिया, फीकुम, फीना, फीहा।
اس میں، ان سب میں، آپ میں، مجھ میں، آپ سب میں، ہم سب میں، اس مؤنث میں. علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، علیہا. اس پر، ان سب پر، آپ پر، مجھ پر، آپ سب پر، ہم پر، اس مؤنث پر. پھر ہم نے تین اور پڑھے تھے. الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، الیہا. اس کی طرف، ان سب کی طرف، آپ کی طرف، میری طرف، آپ سب کی طرف، ہماری طرف، اس مؤنث کی طرف. معہ، معہم، معکا، معی، معکم، معنا، معہا. اس کے ساتھ، ان سب کے ساتھ، آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، آپ سب کے ساتھ، ہمارے ساتھ، اس مؤنث کے ساتھ. اور آخری ٹیبل ہمارا تھا عندہ، عندہم، عندک، عندی، عندکم، عندنا، عندہا. اس کے پاس، ان سب کے پاس، آپ کے پاس، میرے پاس، آپ سب کے پاس، ہمارے پاس، اور اس مؤنث کے پاس. تو یہ تھے جی 9 ٹیبل. میں نے آپ کو ساری دہرائی کروا دی ہیں، ریویژن آپ کی ہو گئی ہے. اور ان کی پریکٹس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ پچھلی ریکارڈنگ سے، پچھلے وینسڈے کی ریکارڈنگ سے سمجھ سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اس میں جو شروع کا حصہ ہے، الا، مع، عندہ، ہم نے ان کو حرف کے طور پہ پڑھا. یہاں پہ بی، فی، علا، یہاں پہ لا، من، اور عن، یہ حرف کے طور پہ ہم پڑھ رہے تھے. لیکن جو آخری جو ٹیبل ہے، ہو، ہم، کا، یہ، کم، نہا، یہ اسم تھا. تو حرف اور اسم کو ملا کے ہم پریکٹس کر رہے تھے. ابھی میں آپ کو لیسن 8، جس میں ہم نے تشہد پڑھا ہے اے پارٹ میں، بی پارٹ میں آپ کو 2 چیزیں بتاؤں گی. 4 باتیں بتاؤں گی حروف کے بارے میں، اور اسماء اشارہ کا ایک ننا منا سا ٹیبل پڑھاؤں گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد لیسن 9 میں ہم جا کے فیل کے بارے میں کچھ پڑھیں گے. تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حروف. ابھی میں نے آپ کو 9 حروف بتائے تھے، ابھی ابھی جو ہم نے پریکٹس کی ہیں. لا یا لام زیر لی لیے، من سے، ان کسی کے بارے میں، بی سے یا ساتھ، فی میں، علا پر، الا طرف، مع ساتھ، عندہ پاس. یہ 9 حرف ہم نے پچھلے وینسڈے کو پڑھے تھے. ان میں سے جو 2 ہیں، مع اور عندہ، یہ کام حرف کی طرح کرتے ہیں لیکن اصل میں اسم ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں. تو یہ جو حروف ہیں ان کے بارے میں آج میں 4 باتیں بتاؤں گی. دھیان سے سن لیں. کہتے ہیں پلو سے باندھ لیں، یعنی یاد رکھ لیں، بھولنا نہیں ہے، کیونکہ پورا قرآن سمجھتے ہوئے آپ کو یہ کانسیپٹس، یہ 4 باتیں کام آئیں گی. ٹھیک ہے. پہلی بات، جب آپ سمجھتے ہوئے کسی ایک زبان کو دوسری زبان میں کنورٹ کرتے ہیں تو مختلف حروف استعمال ہوتے ہیں. ہر زبان میں جملہ بنانے کے لیے حروف کا استعمال مختلف ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل، عربی میں ایک جملہ ہے آمنت باللہ، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پر. آمنت، میں ایمان لایا. ہم اردو میں اس کو یہی کہتے ہیں نا، باللہ، اللہ پر. رائٹ. اردو میں یہ لکھا ہوا ہے میں اللہ پر ایمان لایا. تو اور انگلش میں لکھا ہوا ہے آئی بلیوڈ ان اللہ. یہ بات تو ایک ہی ہے لیکن 3 زبانوں والے لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں. عرب والے بیچ میں حرف کیا استعمال کر رہے ہیں؟ بی. بی کے معنی ہم نے کیا پڑھا ہے؟ سات. ساتھ بھی، ساتھ یا سے سے. بھی. ابھی تک ہم نے یہی پڑھا نا. لیکن اردو میں بی کا معنی کیا، ترجمہ کیا کیا جا رہا ہے؟ پر، پر، پر کیا جا رہا ہے. پر کے لیے ہم نے کیا عربی پڑھی تھی؟ الا. الا. اللہ، لیکن عربی میں تو وہ الا نہیں لگا رہے، عربی میں تو وہ کچھ اور لگا رہے ہیں. انگلش میں کیا استعمال ہو رہا ہے حرف؟ ان. ان ان، استعمال ہو رہا ہے. ان کی عربی ہم نے کیا پڑھی تھی؟ میں، فی. فی. فی، ویری گڈ. تو اگر ہم انگلش بولنے والے اگر یہ کہیں کہ نہیں 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 نہیں، آئی بلیوڈ ان اللہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے عربی میں آمن تو فی اللہ ہی ہونا چاہیے. تو عرب لوگ اس پہ ہنسیں گے کہ تمہیں عربی نہیں آتی. اور جو اردو بولنے والے ہیں وہ کہتے ہیں میں اللہ کے ساتھ ایمان لایا، تو یہ تو کوئی جملہ ہی نہیں ہے. میں اللہ پر ایمان لایا ہوگا، میں اللہ میں ایمان لایا بھی نہیں ہوگا. تو اردو والے اپنے حساب سے جملہ بناتے ہیں. اردو کا انداز سمجھنے کا، بولنے کا، پڑھنے کا الگ ہے. انگلش کا الگ ہے، عربی کا الگ ہے. تو ایک کانسیپٹ سمجھ لیں آپ. جب بھی زبان تبدیل کرتے ہیں، مطلب دوسری زبان میں ایک زبان کو سمجھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کنورٹ کرتے ہیں. تو ہر زبان کو تبدیل کرتے ہوئے کئی جگہوں پر ایسا ہوگا کہ حروف کا معنی کو آپ کو تھوڑا بہت بدلنا پڑے گا پوری انڈرسٹینڈنگ کے لیے، بات کو اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے. تو اس پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. یہ نارمل بات ہے، ایسا ہوگا. تو کبھی کبھی ہوگا کہ عربی میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ اس کا معنی پر پڑھ رہے ہوگے، حالانکہ پر تو اس کا معنی ہوتا ہی نہیں. تو یہ نارمل بات ہے، اس طرح ہوگا. آپ نے اس میں کوئی فکر نہیں کرنی. آہستہ آہستہ آپ کو پریکٹس خود ہی ہو جائے گی، چیزیں سمجھ آئیں گی. یہ تھی پہلی بات. دوسری بات، یہ جو حروف ہوتے ہیں
कभी कभी ऐसा होता है कि एक जुबान में हर्फ मौजूद है और दूसरी जुबान में हर्फ की जरूरत ही नहीं है और हर्फ के बगैर ही जुमला बन गया। मानी तो सेम है फिर भी, लेकिन हर्फ है ही नहीं। जैसे इग़फिर ली, बख्श दे। हम इसको उर्दू में कहते हैं बख्श दे मुझे। क्या कहते हैं? बख्श दे मुझे, या मगफिरत कर मेरी। इंग्लिश में कहते हैं फॉरगिव मी। तो आपने देखा कि अरबी में इग़फिर के बाद लामज़े ली इस्तेमाल हो रहा है। लामज़े ली का मतलब होता है लिए, लेकिन हम ये तो नहीं कहते मगफिरत कर मेरे लिए, नहीं होता ये, मगफिरत कर मेरी, ठीक है, या मुझे माफ कर। तो उर्दू में हमें हर्फ की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अरबों ने लामजे ली लगाया हुआ है। इसी तरह इंग्लिश में फॉरगिव फॉर मी तो नहीं है कि माफ कर दे मेरे लिए। इंग्लिश बोलने वाले कहेंगे आपको इंग्लिश ही नहीं आती, फॉरगिव फॉर मी नहीं होता, फॉरगिव मी होता है। तो इंग्लिश वाले भी हर्फ नहीं लगा रहे, लेकिन अरबी वाले कह रहे हैं हर्फ लगेगा। तो ऐसा होगा क्योंकि उनकी जुबान का अंदाज मुख्तलिफ है। आप ऐसी चीजें आए तो आपने परेशान नहीं होना। कभी कभी अरबी में हर्फ होगा, दूसरी जुबान में आप नहीं लगाएंगे, उसके बगैर जुमला बन रहा है तो आप बना लें, कोई मसला नहीं है। इसी तरह तीसरी बात हरूफ की ये है, कभी कभी अरबी में हर्फ की जरूरत नहीं पड़ेगी जुमला बनाने के लिए, लेकिन उर्दू इंग्लिश में दूसरी जुबान में आपको जरूरत पड़ेगी। तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हर्फ उसमें ऐड कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई मसला नहीं है। अब देखें, वा इरहमनी, ये आप कैसे बना, ये आप अभी न्यू है, ऐसा ऐसा आपको ये आसान लगेगा। वा का मतलब होता है और, इरहम हम उर्दू में कहते हैं रहम कर। नी, नी का मतलब ये वो है रब्बी जैसे बनता है, यानी मैं मुझे। तो हम उर्दू में कहते हैं रहम कर मुझ पर, हम कहें रहम कर मुझ या मुझे, तो वो गलत बनता है। इंग्लिश में एंड हैव मर्सी ऑन मी, ऑन लगा रहे हैं। तो इंग्लिश और उर्दू में हमने हर्फ लगाया, लेकिन अरबी में नहीं लगाया। पिछले जुमले में अरबी में था, दूसरी जुबान में नहीं था। यहाँ दूसरी जुबान में हर्फ है, अरबी में नहीं है। तो ऐसा होगा, हर जुबान की अपनी जरूरत है, जहां जरूरत है वहां लगाते हैं, जहां नहीं है वहां नहीं लगाते। ये थी तीसरी बात। हुरूफ की चौथी और आखिरी बात, जब आप किसी छोटे छोटे जुमलों में, सेंटेंस में हुरूफ को बदलते हैं तो क्या होता है, उससे उससे पूरे जुमले की सेंस बदल जाती है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक मिसाल से समझाती हूँ। अब ये मत सोचिए कि ये सिस्टर समिया तो कहती है आसान है, तो अरबी मुश्किल क्यों हो रही है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप याद रखें, उर्दू में भी यही होता है, इंग्लिश में भी यही होता है। हमें महसूस क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी मदर टंग है, मादरी जुबान है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हमें कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज देखा जाए तो मुझे अब ये लगने लगा है कि उर्दू इंग्लिश में ज्यादा मुश्किलात हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, अजीब सी चीजें हैं जो नए सीखने वालों को ज्यादा मुश्किल लगती होंगी। तो ये हर जुबान में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक चीज है लकड़ी, और लकड़ी क्या है, लकड़ी से मारा, इसमें मुझे बताएं इसम क्या है, पहले तो ये बताएं। लकड़ी, लकड़ी। लकड़ी लकड़ी। इसम है। फेल क्या है? फिर मारा, मारा। मारा, मारा। मारा। और हर्फ क्या है? से, से, से या को, ये हर्फ है, ठीक है। तो लकड़ी से मारा, अगर मैं कहूं उसने लकड़ी से मारा, तो आप सोचेंगे उसने लकड़ी से किसी को मारा है, यही समझ आएगा ना। अगर मैं आपसे कहूं उसने लकड़ी को मारा, तो आप सोचेंगे कोई आया और उसने लकड़ी के ऊपर कुछ मारा है। तो आपने देखा कि इसम भी नहीं बदला, फेल भी नहीं बदला, लेकिन सिर्फ हर्फ के बदलने से पूरे जुमले की सेंस ही बदल गई। इसका मतलब है ये जो हर्फ हमें ऐसे ही बस मामूली से लगते हैं, से, को, में, ये कौन से खास लफ्ज हैं, ये इतने खास हैं कि पूरे जुमले की सेंस बदल देते हैं। तो किसी चीज को भी कहते हैं अंडर एस्टिमेट नहीं करें, है ना। इसी तरह इंग्लिश में होता है, गेट एक लफ्ज है, गेट आमतौर पे उसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है बताएं जरा। हासिल करना, कुछ हासिल, हासिल करना। तो अगर गेट के साथ इन आ रहा है, गेट के आ जाओ अंदर, गेट आउट, निकल जाओ, बाहर चले आ जाओ, जाए, बाहर चले जाओ। गेट अप, गेट डाउन। तो गेट वही है, लेकिन हर्फ चेंज होने से मानी बदल गया। तो इट्स वेरी नॉर्मल। अगर ये दूसरी जुबानों में नॉर्मल है तो अरबी में क्यों नहीं हो सकता? अरबी में भी होता है। आज ही हमने मिसाल पढ़ी है सल्ली की, है ना। सल्ली ली रब्बी का, सल्ली दोनों जुमलों में सल्ली है। अगर सल्ली के साथ लम्जे ली है तो उसका मानी असली वाला मानी होगा जो उसका है, नमाज पढ़िए। और अगर सल्ली के आगे हर्फ है आला, तो उसका मानी नमाज नहीं होगा, उसका मतलब होगा रहमत भेजे, ठीक है, दुरूद भेजे, रहमत भेजे। तो आपने देखा कि लामजे ली और आला यानी हर्फ बदलने से जुमले की सेंस बदल गई। यानी नमाज पढ़िए अपने रब के लिए, रहमत भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया।
आ गया? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको इजी अंदाज में समझाऊं। रिपीट करेंगे जब आप, तो आपको मजीद क्लियर हो जाएंगी। ये चारों बातें मैंने यहाँ एक स्लाइड में भी लिख दी हैं, आप इनको दोहरा सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। आगे तो आज का हुरूफ का बस इतना सा लेसन था। अब हम चलते हैं जी अस्माए इशारा पर, यानी ऐसे कुछ इस्म मैं आपको सिखाऊंगी। हर्फ हो गए ना, आज हमने हर्फ, इस्म और फेल तीनों सीखना है। आज के हर्फ हो गए, मैंने चार बातें आपको सिखा दी। इस्म में क्या करना है, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं इसमें जो किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज, ये एक फोन मेरे सामने रखा है, ठीक है? तो क्या होगा, ये फोन सामने, ठीक है? अगर मैं बिल्कुल पास है ना, तो मैं कहूँ ये फोन, दिस, ये, तो हम इशारा क्या कहेंगे, राइट हैंड से, क्योंकि ये मुजक्कर है। सब अपने राइट हैंड सामने करेंगे, और कोई भी चीज जो पास पड़ी है उसकी तरफ यूं इशारा करें, नीचे की तरफ, शहादत की उंगली से, एक उंगली से, क्योंकि एक चीज है। उर्दू में कहेंगे ये, इंग्लिश में दिस, ये, दिस, और अरबी में कहेंगे हाजा। क्या कहेंगे अरबी में? هذا हाजा, हाजा। राइट, हाजा। वेरी गुड। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे पास ज्यादा दो मोबाइल्स हैं, ठीक है, ज्यादा हैं, राइट? या हम और भी ऐड कर लेते हैं, ये कुछ सीडीज हैं, ठीक है? तो मैं इस कहती हूँ, चले जी, ये हम कर लेते हैं, ज्यादा सारी चीजें रखी हैं, तो मैं उनको क्या कहूंगी, ये सब, इंग्लिश में दीज, और अरबी में कहेंगे हाउलाई। क्या कहेंगे? हाउलाई। हाउलाई। हाजा का मतलब क्या था? ये एक के लिए, वाहिद के हाउलाई, लिए। ये ये सब सब के लिए। ये फिर सब। बताइए, हाजा, ये ये हाउलाई। ये सब। सब। अब ये आप, सब मैं उर्दू बोलूंगी, आप अरबी बोलेंगे। ये, हाजा। ये सब, हाउलाई। हाउलाई। ये, हाजा। हाजा। ये सब, ये सब हाउलाई। 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 सही है। अब हमने दो लफ्ज सीख लिए, एक वाहिद था, एक जमा था। अब हम आगे क्या बात कर रहे हैं, अगर यही फोन हम कहते हैं दूर रख देते हैं, कहीं दूर है, वहां थोड़ा दूर है, तो दूर की चीज के लिए हम उर्दू में कहते हैं वो। तो क्या होगा, मैं यूं सीधी बैठी हूं आपके सामने, इसका इशारा मैं सामने भी नहीं करूंगी, और मैं राइट पे भी नहीं करूंगी, बल्कि सामने और राइट के दरमियान जो जगह है, यानी मैं सीधी हूं और इशारा तिरछा जाएगा, टेढ़ा, और थोड़ा दूर जाएगा। पहले तो करीब था ना, करीब की चीज थी ये सब, चार उंगलियों से ये सब। अब दूर की चीज है, तो मैं उसको कहूंगी वो, वो, दूर, थोड़ा सा दूर, इशारा तिरछा होगा, टेढ़ा, वो। उम्मीद है आप सब इशारे की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी। और अगर वहां ज्यादा चीजें हैं दूर, तो मैं कहूंगी चार उंगलियों के इशारे से, वो सब, दोज, वो सब। तो अरबी इका में वो की वो अरबी सब है जालिका, और ज्यादा के लिए उलाइका। उलाइका उलाइका। ठीक है, एक शख्स, एक चीज जो दूर है उसकी तरफ इशारा करने के लिए क्या कहेंगे अरबी में? जालिका जालिका। 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 और अगर ज्यादा चीजें हैं तो उलाइका उलाइका। उलाइका। सुभान अल्लाह। तो आपने देखा कि ये लफ्ज कुरान में कितने आते हैं, उलाइकल लजीना, इस तरह के, हा उलाई, हाजा जालिका, जालिकल किताबु ला रैब फीह, बहुत से लफ्ज हैं। इनको हम फिर कुरान में मजीद इनको समझेंगे और मजीद तरीके से। तो अब हमने सब समझ लिया। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह, इतना एफिशिएंट तो होना चाहिए। अब हम अरबी सीख रहे हैं, हम फिर बहुत नाज है हमें इस पर, अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमने अल्लाह की नबी की जो मुबारक जुबान है कुरान की, वो हमें समझ आ रही है। अब हमें उर्दू की जरूरत नहीं है, इशारों से हमें समझ आ जाएगी। तो हम सिर्फ अरबी में कैसे पढ़ेंगे, हाजा, हाजा हाउलाई, जालिका, उलाई उलाइका। जालिका उलाइका। उलाइका ठीक है, हाजा। हाजा एक मिनट, एक हाउलाई। मिनट, मैं जो इशारा करूं आप वो लफ्ज पढ़ेंगे। इसका क्या लफ्ज है अरबी में? हाजा। हाजा हाजा, हाजा। उलाई एक मिनट रुक जाएं, सबको सोचने दें। अब बताएं। हाउलाई हाउलाई। हाउलाई, हाजा, हाउलाई, हाजा, हाउलाई। ठीक है, हाउलाई। हाजा। हाँ जी। इसकी अरबी बताएं। जालिका जालिका। ज़ालिका, ज़ालिका, वेरी गुड। और ये, जालिका। उलाइका उलाइका। उलाइका वेरी गुड, उलाइका, ज़ालिका, उलाइका, उलाइका। ज़ालिका, जालिका। उलाइका। उलाइका उलाइका। तो आपने देखा जालिका कि उलाइका इससे पहले जो टेबल मैंने आपको सिखाए थे, हुआ हुम का टेबल उलाइका। था, उसमें 6 मुजक्कर थे, एक मुअन्नस था, टोटल 7 लफ्ज थे। फिर हमने हु हुम का टेबल पढ़ा, रब्बुहु रब्बुहुम वाला, उसमें भी 6 मुजक्कर थे और एक मुअन्नस, 7 लफ्ज थे।
اسماء اشارہ کے جو ٹیبل میں آپ کو ابھی سکھا رہی ہوں اس میں یہ مذکر کا ٹیبل ہے صرف، اور اس میں 4 لفظ ہیں، تو یہ منی ٹیبل ہے، چھوٹا سا ننا منا سا. ہاذا، ہاؤلائی، ذالکا، اولائکا. پہلے دونوں ٹیبلز کے اشارے بالکل سیم تھے، اس کے اشارے مختلف ہیں. ہاذا، ہاؤلائی، ذالکا، اولائکا. اگر یہی لفظ آپ نے کسی مونس کے لیے استعمال کرنے ہو، کوئی چیز مونس ہے فار ایگزامپل، تو مونس کے لیے آپ اشارہ کون سے ہاتھ سے کریں گے؟ الٹے ہاتھ سے. الٹے ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے، بائیں ہاتھ سے. تو اس کے لیے نا 2 لفظ چینج ہوں گے، غور سے دیکھیں. جمع جو ہے نا یہ سیم رہے گی مونس میں. مونس ہے یا مذکر ہے، ہا الائی اولائکا، جمع حاضی، جو ہے نا وہ سیم ہوتی ہے. صرف ہاذا اور ذالکا تبدیل ہوگا، وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. یہ دیکھیں، یہ ہے ہمارا مذکر کا ٹیبل. 1000 بار تقریباً یہ لفظ قرآن میں آتے ہیں، تو ان کو اچھے سے پریکٹس کریں. ٹھیک ہے. اور ہاذا اگر ایک مذکر کے لیے ہے، مذکر چیز ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاذا، یہ. تو مونس کے لیے کہتے ہیں ہاذیہی. کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. حاضی، ہاذا یہ مذکر، ہاذیہی دوسرے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے، یہ مونس. حاضی، ہاذا، ہاذیہی، ہاذا، ہاذیہی، ہاذا، حاضا، ہاذیہی. اب اگر دور چیز ہے تو ذالکا وہ، ذالکا، ذالکا وہ مذکر، اور ذالک، لیفٹ ہینڈ سے ٹیڑھا اشارہ دور، تلکا، تل کا وہ تلکا. مونس. ذالکا وہ مذکر، تل کا وہ مونس. تو مونس کو ہم نے پنک کلر میں لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اوکے. تو اب ذرا میں مذکر بتاؤں گی، آپ مونس بتائیں گے. ہاذا، حاضی، پھر سے ہاذا، حاضی، ویری گڈ. ذالکا، تلکا، ذالکا. تلکا. اب میں مونس بتاؤں گی، آپ مذکر بتائیں گے. ہاذیہی، حاضا، ہاذیہی، حاضا، تلکا، ذالکا، تلکا. ذالکا. ونڈرفل، ماشاء اللہ. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ نے الگ الگ ٹیبل پڑھنا ہو مذکر کا، تو آپ کہیں گے نا ہاذا، ہاؤلائی، ذالکا، اولائکا. تو مونس کا ٹیبل کیسے ہوگا؟ حاضی، هذه هؤلاء هذه تلك هؤلاء تلکا، تلك اولئک. هذه، هذه، هؤلاء، تلك، تلك اولئک. أولئك. تو صرف واحد میں فرق آیا تھوڑا سا، جمع جو ہے وہ سیم ہے. سمجھ آ گیا سب کچھ ٹیبل؟ جی میم. الحمد ویری لله. گڈ، ویری گڈ. تو ہم چھوٹے چھوٹے جملے بھی بنا سکتے ہیں. اتنا کچھ ہم نے سیکھ لیا ہے اتنے دنوں میں، صرف 4 دنوں میں. آج چوتھا دن ہے ہماری کلاس کا. ہاذا یہ، اگر ایک مسلمان ہے جس سے فار ایگزامپل اشارہ ہو رہا ہے، ہاذا مسلم یہ مسلمان ہے، ہا اولئک مسلمون یہ سب مسلمان ہیں، مسلم، ذالک مسلم وہ مسلمان ہے، اولئک مسلمون وہ سب مسلمان ہیں. ایسا. ٹھیک ہے. اگر میں آپ سے سوال کروں، من میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا مطلب ہوتا ہے کون. اگر درمیان کون، میں آئے، لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ، کیونکہ اگر 2 لوگ ایک ساتھ بولتے ہیں نا تو پھر آواز بریک ہو جاتی ہے ریکارڈنگ میں. من کا مطلب ہے کون. عام طور پر اگر شروع میں آئے تو سوال کے لیے ہوتا ہے کون، اور اگر جملے کے درمیان میں آئے تو اس کا مطلب جو ہوتا ہے، جو یا جس کے لیے، اس طرح سے معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر میں آپ سے کہوں من کون ہے، ہاذا یہ کون ہے، یہ تو جواب کیا ہوگا؟ حاضا مسلم، هذا مسلم. ہاذا مسلم. اور معنی کیا ہے اس کا ترجمہ؟ یہ یہ مسلمان مسلم ہے. ہے، مسلمان ہے. مرد، ٹھیک ہے. یہ اگر میں آپ مسلمان سے مرد. کہوں بالکل یہ مسلمان مرد ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ رائٹ ہینڈ سے اشارہ کر رہے ہیں تو مرد کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اشارے یہی تو ہیلپ کرتا ہے کہ مسلمان مرد کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. من ہؤلاء کون ہے یہ سب؟ جواب دیں. هؤلاء هؤلاء مسلمون. مسلمون. یہ سب مسلمان ہیں. مسلمان. اگر میں پوچھوں من ذالکا کون ہے وہ، ذالک ذالکا مسلم. مسلم، یہ وہ سب وہ مسلم ہے، وہ مسلمان ہے. مسلمان. من اولئک کون ہے وہ سب، اولئک اولئک مسلمون. مسلمون. وہ وہ سب سب. مسلمان ہیں. ویری گڈ، ویری گڈ. تو آپ یہ سوال جواب جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے گھر میں کریں اور پریکٹس کریں. الحمدللہ ہم نے لیسن 8 کی گرامر پڑھ لی ہے. لیسن 9 میں مطلب لیسن 8 کی گرامر میں ہم نے حروف کی 4 باتیں پڑھی، اور ہم نے اسم کا ایک اشارہ، ایک نیا ٹیبل پڑھا ہے، اسماء اشارہ. پہلے ہم نے پڑھا تھا ہوا ہم،
اس کا نام اگر آپ نے یاد کرنا ہو ضمائر منفصلہ تھا، انگلش میں ڈیٹیچڈ پروناؤن تھا۔ دوسرا ہم، ضمائر متصلہ اٹیچڈ پروناؤن۔ یہ تیسرا ہے اسماء اشارہ، انگلش میں اس کو ڈیمونسٹریٹو پروناؤن بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ یہ بک میں انگلش اردو دونوں نام لکھے ہوئے ہیں، آپ کو اگر یاد کرنے ہو آپ کر بھی سکتے ہیں۔ اب ہم نے یہ تو پڑھا، سوری یہاں پر 9 آنا چاہیے، سو سوری، اس کو میں کریکٹ کر دوں گی، یہ 9B ہے۔ لیسن 9 کے بی پارٹ میں آپ کو فیل پڑھایا جا رہا ہے آج پہلی بار، اس سے پہلے ہم نے اس کورس میں فیل کی بات نہیں کی۔ فعل کے بارے میں صرف ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن کے وہ سارے لفظ جس سے کوئی کام ہونا یا کرنا پتہ چل رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے۔ جیسے آپ سن رہے ہیں، سننا ایک کام ہے، میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، پڑھانا کام ہے۔ تو اس طرح سے بہت سے کام ہوتے ہیں جن میں ٹائم بھی پتہ چلے کہ یہ کام کب ہو رہا ہے، ماضی میں ہو رہا ہے، حال میں ہو رہا ہے، مستقبل میں ہو رہا ہے۔ ایسے سارے لفظ فعل ہوتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی پہلی بار فعل کے بارے میں کہ فعل کی 3 قسموں میں ہم اس کو ڈیوائڈ کر کے سمجھیں گے اس کورس میں۔ اور پہلی والی قسم کے جو ہے وہ فعل ماضی کہلاتی ہے، اور فعل ماضی میں بھی پہلا سیٹ آج ہم مکمل کریں گے، تو یہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ دیکھیے جی، یہ سلائیڈ بار بار آ جاتی ہے، تو اس میں آج ہم اسم کے بارے میں ہم نے بہت کچھ پڑھا، حرف کے بارے میں بہت پڑھا، لیکن آج پہلی بار ہم فعل کے بارے میں پڑھے، فعل، ٹھیک ہے؟ تو فعل کو انگلش میں آپ ورب کہہ سکتے ہیں، سو مسکرائیے، خوشی سے پڑھیے، ٹھیک ہے؟ جتنے دل سے، محبت سے، خوشی سے پڑھیں گے اتنا آسان لگتا ہے۔ عربی میں یاد رکھیں کہ زیادہ تر، اکثر، زیادہ تر جو فعل کے لفظ ہوتے ہیں نا وہ 3 حروف سے بنتے ہیں، 3 حروف سے۔ جیسے فار ایگزامپل ایک لفظ ہوتا ہے فعل، فتح، فعل، فتح، نصر، ضرب، یہ آہستہ آہستہ آپ سمجھیں گے ان کا معنی کیا ہے۔ ان سب میں آپ کو 3 حروف نظر آ رہے ہیں نا، تو زیادہ تر جو فعل ہوتے ہیں نا عربی میں، کام والے لفظ، وہ 3 حروف سے ہی بنتے ہیں، یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے۔ اچھا جی، تو فعل کی 3 قسمیں کون سی ہیں جن میں آپ کو سمجھنا ہے؟ پہلی قسم تو ہے ماضی، یعنی ایسا کام، فعل ماضی، ایسا کام جو ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، which is done، اس کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ انگلش میں آپ اس کو پرفیکٹ ٹینس کہہ سکتے ہیں۔ ایسا کام جو ابھی مکمل نہیں ہوا، not done، اس کو مضارع کہتے ہیں، میم پہ پیش ہے، ڈونٹ forget this، فعل مضارع، اور اس کو انگلش میں امپرفیکٹ ٹینس کہہ سکتے ہیں۔ اب کیونکہ کام ماضی میں ہو گیا ہے، مضارع میں کام نہیں ہوا، اگر کوئی کام نہ ہوا ہو تو پھر اس کی 2 ہی کنڈیشنز ہوتی ہیں، یا تو وہ کام پریزنٹ میں، حال میں ہو رہا ہے، یعنی حال، یا پھر فیوچر میں ہوگا، مستقبل۔ اس کا مطلب ہے مضارع میں دونوں ٹینسز آ جاتے ہیں، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ ماضی میں پاسٹ ہوتا ہے، مضارع میں پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں ہوتے ہیں۔ تو مزے کی بات یہ ہے، انگلش سسٹرز، اس لیے میں کہتی ہوں آپ لوگ پلیز، آئی ڈونٹ نو آپ لوگ مائک کیوں آن رکھتے ہیں جب بات بھی نہیں کرنی، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اپنے مائکس آپ لوگ بند رکھیے، پورا ٹیمپرامنٹ ٹوٹ جاتا ہے نا، لیسن سے ہٹ کے ہماری توجہ کہیں اور چلی جاتی ہے، پلیز۔ اوکے، تو میں کیا بتا رہی تھی کہ ماضی میں وہ کام ہوتا ہے جو ہو گیا مکمل، مضارع میں وہ کام ہے جو مکمل نہیں ہوا، یا ہو رہا ہے یا ہوگا۔ تو پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہمیں ایک ہی طرح سمجھنے ہیں، تو یہ تو اور ہی آسان ہو گیا، ہمیں الگ الگ کر کے سمجھنے ہی پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ تیسری ٹائپ ہوتی ہے کسی کو کام کا کہنا، کام کا ذکر ہو رہا ہے کہیں کہ تم یہ کام کر لو، تم یہ کام نہ کرو، وہ ہوتا ہے فعل امر، امرن، امر کہیں گے اس کو۔ امر ہوتا ہے کسی کو حکم دینا بھی ہو سکتا ہے، گزارش کرنا بھی ہو سکتا ہے، کسی کو کہتے ہیں تم یہ کام کرو، یا کہتے ہیں آپ پلیز تم یہ کام کر لو، تو دونوں میں آپ کچھ کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو وہ ساری ایسے کام جو ہوں گے نا وہ امر ہوں گے۔ آج ہم بات کریں فعل ماضی کی، یعنی ایسا کام جو ہو چکا ہے، ہو گیا پاسٹ میں، ماضی میں، اس کے لیے آپ کو کیا سمجھنا ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ چیز آنے والی ہے، تو اللہ کا شکر کرتے ہوئے خوشی خوشی آگے چلیں۔ آپ کو میں ایک لفظ دے رہی ہوں، اس کو کہتے ہیں فعل، فعل، کیا لفظ ہے؟ فعل، اس میں کتنے حروف سے مل کے بن رہا ہے، حروف تہجی سے؟ 3 الفابیٹس، 3 الفابیٹس۔ اب مائک بند کر لیں پلیز، جواب دے کے فوراً بند کر لیں مائک۔ 3 حروف سے بنا ہے، یعنی فا عین لام سے ایک لفظ بنا ہے جس پہ زبر ہے تینوں پہ، وہ بن رہا ہے فعل۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اس ایک شخص نے کوئی کام کیا، جیسے آپ نے ہوا کہا تھا نا، وہ ایک مذکر نے کوئی کام کیا، تو ایک انگلی کا اشارہ یہاں کریں گے۔ اب ماضی میں خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کو اشارہ
यहाँ होना चाहिए पैरेलल टू द ग्राउंड। मैं आपकी वजह से थोड़ा ऊपर रख रही हूँ। सीधा हाथ इशारा होना चाहिए, सीधे हाथ का, दाएं हाथ का, राइट हैंड का। शोल्डर से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर और इशारे हमने सीखने आगे, वरना गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ इशारा करके कह रहे हैं, एक मर्द की बात हो रही है, फाला उसने किया। ये लफ्ज मैं आपको बता देती हूँ। अब आपको मैं कहती हूँ माजी का टेबल बनाएं। फाला तो मैंने खुद ही बताना है ना, पहला लफ्ज तो आपको मिल ही जाएगा। अब आपने माजी का पूरा टेबल बनाने के लिए फेल मादी में परफेक्ट टेंस में क्या करना होगा, गौर से देख लें। ये जो आखिर में रेड कलर के 5 अलामतें आपको मिल रही हैं, आप इनको फेल मादी का फॉर्मूला भी कह सकते हैं। वो क्या है? एक लफ्ज के आखिर में आ रहा है वाव अलिफ, फा इन लाम के आखिर में वाव अलिफ, तो बन रहा है फालू। फिर आ रहा है आखिर में ता जबर, तो बन रहा है फालता। फिर आ रहा है ता पेश, तो बन रहा है फालतू। फिर आ रहा है ता मीम, फालतुम। फिर आ रहा है नून अलिफ जबर ना, तो बन रहा है फालना। तो इट्स नॉट ए बिग डील, ये कोई मुश्किल नहीं है कि आप ये 6 अलामतें याद कर लें, अपने जेहन में कर लें कि ऊ, ता, तू, तुम, ना। ऊ, ता, तू, तुम, ना। इट्स नॉट अ बिग डील। फ्यू सेकंड्स में, 1 मिनट से पहले आपको याद हो गई। तो आपको मैं जो भी फेल दूंगी, अगर आपने उसका फेल मादी बनाना है, काम हो गया है, उसने कर लिया कोई भी काम, तो आप उसके आखिर में ये लगाते जाए, आपका टेबल खुद ही बन जाएगा। इंटरेस्टिंग बात है ना? बताइए जरा। अल्हम्दुलिल्लाह, जी। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस टेबल को अगर हम, मैंने आपको फॉर्मेट समझा दिया, स्ट्रक्चर समझा दिया है। पूरे फॉर्म जो है ना, सही अंदाज में टेबल को ऐसे लिखा जाता है। 6 अल्फाज हैं, 6 के 6 मुजक्कर हैं, इसलिए राइट हैंड से इशारा हो रहा है। वाहिद होता है मुजक्कर तो शहादत की 1 उंगली से इशारा होता है, जमा होता है तो 4 उंगलियों से इशारा होता है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। इशारे इसके बिल्कुल वही हैं जो हुबा उनके थे, लेकिन इसमें खास ख्याल रखना है कि इशारा यहाँ रहे, यहाँ या ऊपर ना जाए। वो मादी का इशारा नहीं होता, यहाँ होगा। ठीक है, तो बन रहा है फाला, उसने किया। क्या किया? कोई भी काम किया, कोई भी काम के लिए यूज हो सकता है। आप अच्छा काम ही सोचें, जाहिर है। उसने समझो कुरान कोर्स किया, हम अच्छा काम कहते हैं। उसने कुरान कोर्स किया, ये जेन में ये रखें। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता तुमने किया, फालतू मैंने किया, फाल तुम सब ने किया, फालना हमने किया। अब ये बन गए जी 6 लफ्ज। ठीक है, इन सब के आखिर में वही ऊ ता तू तुम ना आ रहा है। अब आपको यहाँ पे एक जहाज नजर आ रहा है, जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। आप कभी एयरपोर्ट गए हो? अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मामा इस वक्त उम्रे पर हैं, उम्रे पे गई हुई हैं, और हम उनको एयरपोर्ट ड्रॉप करने गए थे। जद्दा के लिए उनकी फ्लाइट थी अल्हम्दुलिल्लाह। जब तो होता यह है कि अगर आप वहाँ वेट कर ले, अपने जहाज को देखना है, कभी फ्लाई करते हुए देखा हो, आप एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं, आप कहते हैं जहाज चला गया। जहाज माजी हो रहा है ना, जा रहा है, गया गया। तो जब वो जा रहा होता है, फ्लाई कर रहा होता है, तो आप जहां पर आप खड़े हैं, आपको उसका कौन सा हिस्सा नजर आ रहा होता है? उसका मुंह का हिस्सा आपकी तरफ होता है, आपको नजर आ रहा होता है, या टेल का हिस्सा, पिछला हिस्सा, पिछला आखिरी, हिस्सा। खुला हिस्सा। यानी आखिरी हिस्सा, आखिरी हिस्सा नजर आ रहा होता है ना, है ना? क्योंकि जहाज उड़ गया, माजी हो गया, तो उसका आखिरी हिस्सा नजर आता है। तो आपने याद रखना है कि ये जो अलामतें आपको नेवी ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर में नजर आ रही हैं, ऊ, सॉरी, ऊ, ता, तू, तुम, ना, ये अलामतें मादी के हमेशा आखिर में आती हैं। ऐसा ना हो कि मैं आपको फालू दूं तो आप शुरू में लगा दें, नहीं। हमेशा आप माजी का टेबल बनाते हुए आखिर में लगाएंगे। जैसे जहाज उड़ गया तो आखिरी हिस्सा नजर आ रहा है, इसलिए आपको एक मिसाल दी है ये समझाने के लिए। और याद रखिए, ये मेहनत आपकी जाया नहीं हो रही है। अगर आप इस पैटर्न को सही समझेंगे, इशारों से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी तरह याद करेंगे, तो आपको इसके पैटर्न पर, फाला के पैटर्न पर, कुरान के 9,000 लफ्ज जो है ना, वो सेम मादी के पैटर्न पर आपको समझ आएंगे। इतने लफ्ज कुरान में आते हैं, हजारों। ठीक है, तो मैं एक दफा अरबी में पढ़ती हूँ, फिर मैं आपको मौका देती हूँ, आप लोग पढ़िएगा। फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना। अब मैं चाहूंगी आप में से हैंड रेज करें, कौन इसको पढ़ना चाहेंगे? हैंड रेज करें, वन बाय वन हम देखते हैं। सिस्टर शबाना असगर, माइक ऑन करें अपना, और तर्जुमे के साथ पढ़ें और इशारा भी करें। जी। फ़अला उसने किया कोई काम, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। वेरी फ़अला, गुड। फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। ओके, तो यही इसी तरह का टेबल हम आगे चलते हैं और फिर बाकी सबको भी मौका देते हैं। ठीक है, आपने देखा
کہ فعل اس نے کیا، یہ تو ایک لفظ تھا نا، یہ ماڈل ٹیبل ہے، یہ یاد رکھیے گا. فاعل لام فعل، فعل سے فعلہ بنتا ہے، فعلہ سے فعل بنتا ہے. تو یہ ماڈل ہے. جیسے آپ شامی کباب بناتے ہیں نا یا کچھ بھی، اس کی شیپ کرنے کے لیے وہ جو اس کو ہم کیا اردو میں سانچا کہتے ہیں. تو فا عین لام سمجھو وہ سانچا ہے جس میں قرآن کے سارے فعل بنیں گے. جتنے قرآن میں فعل الفاظ ہیں، ہزاروں اسم فعل حرف میں سے جو فعل ہیں وہ اسی سانچے میں آنے ہیں. تو فا عین لام تو وہ ہے. اب اس کے اندر ہم اگلا ٹیبل بنا رہے ہیں، یعنی فا، ایک پہلے حرف کو ہمیشہ فا کہتے ہیں، دوسرے کو عین اور تیسرے کو لام. اب جب نیا لفظ ہمارے پاس کوئی فعل آئے گا، ایسا کوئی لفظ جس میں کام پتہ چل رہا ہے، زمانہ پتہ چل رہا ہے، تو ہم اس کو اسی میں سیٹ کریں گے. یعنی فا کی جگہ ہم نے جیم لگا دیا، عین کی جگہ عین ہے، لام کی جگہ لام ہے. تو بن گیا جعلا. جعلا بھی عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے اس نے بنایا. اس کے آگے اب آپ او، تا، تو، تم نہ لگا دیں تو جعلا کا فعل ماضی کا ٹیبل بن جائے گا. کتنا آسان ہے. تو یہ دیکھیں ذرا آپ، یہ آپ کو میں نہ دکھاؤں گی. کیا دکھاؤں گی؟ 3 ٹیبل دکھا رہی ہوں میں آج آپ کو. 3. پہلا کیا ہے؟ جلدی سے بتائیں. فتح 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 فتح. دوسرا کیا ہے؟ فعل فعلا اور تیسرا کیا ہے؟ جعل جعلا جعلا. پہلے کا معنی ہے اس نے کھولا کسی بھی چیز کو، دوسرا ہے اس نے کیا، تیسرا ہے اس نے بنایا. تو یہ 3 کام ہیں جو کیے جا رہے ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ کام ہو گئے ہیں. اس نے کھولا، اس نے کیا، اس نے بنایا. تو یہ فعل ماضی کے لفظ ہیں 3. ان تینوں کے اگر ٹیبل بنانے ہوں، تینوں کے آخر میں او، تا، تو، تم نہ لگے گا اور ٹیبل بن جائے گا. پہلی بات. دوسری بات آپ دھیان سے سن لیں، اس کو پہلا سیٹ کیوں کہا جا رہا ہے. ایک تو اس سے پتا چل رہا ہے اگر سسٹر سمیہ آج پہلا سیٹ پڑھا رہی ہیں، اس کا مطلب ہے اور بھی سیٹ آئیں گے. بالکل آئیں گے، اگلے وینسڈے کو ہم اور سیٹ پڑھیں گے. آج ہم پہلا سیٹ پڑھ رہے ہیں، 3 سیٹ اور ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی. ان کے آخر میں بھی او، تا، تو، تم نہ ہی آئے گا، وہ ماضی کے ہی ہیں. لیکن ان میں آگے جا کے کچھ تبدیلیاں آئیں گی زبر زیر میں، اس لیے ان کا ایک ہی سیٹ نہیں بنایا گیا. وہ کہہ رہے ہیں ماضی کے 4 سیٹ بنا دو. ان چاروں میں تھوڑا تھوڑا ڈفرنس ہے، ڈفرنس کی زبر زیر کی بیس پہ ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے. ادروائز او، تا، تو، تم نہ یہ سیم رہے گا، لیکن کہیں اور تبدیلی آئے گی. اس لیے ایک سیٹ بناؤ جس میں سیم ایک جیسے ٹیبل ہوں، ایک جیسے فعل ہوں. تو پہلا سیٹ، اس کا نام رکھا ہے شارٹ نیم فا. اس گروپ کا لیڈر ہے فاتحہ. کون ہے لیڈر؟ فتح فتح. تو فتح کے نام پر اس کا شارٹ نیم ہے فا. اب آپ کہیں گے کہ سسٹر سمیہ تو کہہ رہی تھی کہ فعلا جو ہے ماڈل تو یہ ہے، تو اس کو گروپ لیڈر کیوں نہیں بنایا؟ اس کو اس لیے نہیں بنایا کیونکہ فا عین لام جو ہے نا، یہ قرآن کے سارے افعال کا لیڈر ہے، تو اس لیے اس کو چھوٹے سے گروپ کا دوبارہ لیڈر نہیں بنا رہے ہم. اصل میں یہ سارے کے سارے جتنے قرآن میں افعال آتے ہیں ان سب کا سب سے بڑا لیڈر ہے یہ. اس لیے اس کے بعد اس کے انڈر چھوٹے چھوٹے ٹیبل بن رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے گروپ بن رہے ہیں. اس لیے چھوٹا گروپ کا لیڈر دوبارہ بنانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. تو اینی ویز، ورنہ ہم یہاں فعالہ کو بھی گروپ لیڈر بنا سکتے تھے، یہ کوئی ناٹ اے بگ ڈیل. ان تینوں کے ہم ٹیبل پڑھ لیتے ہیں، آپ کو یہ چیزیں خود بخود سمجھ آتی جائیں گی. تو مین جو ٹیبل ہے فتح کا، اس نے کھولا. فتحو ان سب نے کھولا. فتح آپ نے کھولا. فتح تو میں نے کھولا. فتح تم آپ سب نے کھولا. فتح نہ ہم نے کھولا. تو آپ نے دیکھا فاعلہ کی جگہ فتح آیا ہے، آخر میں وہی فارمولا لگا ہے. تو اب ہینڈ ریز کریں آپ میں سے کون اس کو پڑھنا چاہے گا. جی سسٹر نزت مسعود پلیز اپنا مائک آن کریں اور عربی اور ترجمہ دونوں پڑھیں. اشارے بہت ضروری ہیں. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتح آپ نے کھولا، فتح تو میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتح نہ ہم سب نے کھولا، فتح 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 تو فتح تم فتح نہ. ویری گڈ. اور آپ نے جو شروع میں کہا ہے نا، اس نے کھولا نہیں کہنا، اس نے کھولا کہیں تو زیادہ پرفیکٹ انڈرسٹینڈنگ ہے. اس نے کھولا، اس ان سب نے کھولا. اس ٹھیک ہے. ان سب تو اوکے. ایک اور جو ہے وہ ہم یہاں پر ایک اور سسٹر سے جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ صرف عربی میں ہمیں سنا دیں. سسٹر امبر صرف عربی میں سنا دیں ہمیں. فتح، فتحو، فتحت، فتحتو، فتحتا ہے سسٹر، یہ فتحتا. فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا. ویری گڈ. تو او، تا، تو، تم، نا، یہ آوازیں آپ یاد رکھیں.
चलिए जी, भाई कपड़ा बंद कर लें, आगे चलते हैं। इसी का दूसरा एक्सक्यूज टेबल मी मैम। फाला। जी सिस्टर नसीम। जी मैम, ये पूछना था, तुम्हें जो हा साकिन क्यों हुआ? कौन सा हा सिस्टर साकिन हुआ है? वो पीछे जो फतह का की गर्दान की थी हमने, फतहा कहाँ की। पर? हाँ कहाँ जी, पर ये हा साकिन हुआ है? ये है फतह था, फतह तू। ये हा जो है ऊपर तो हरकत के साथ है, नीचे सिस्टर जो वो है। तो देखिए, ये क्यों से का मतलब जो है वो कौन जानते हैं? वो अरब जानते हैं जिनकी जुबान है। हमारा तो जी काम है जी उनकी जुबान को समझना। सो देर इज नो जी स्पेसिफिक रीजन। जब लफ्ज का स्ट्रक्चर बदलता है तो उसकी उसकी अदायगी बदल जाती है। जी उर्दू में भी हम कहते हैं दौड़ना, अड़े पे जज्म है। हम कहते हैं दौड़ा, तो अड़े पे जबर क्यों आया? कोई अरबी हमसे पूछेगा दौड़ा में आपने अड़े पे जबर क्यों लगाया है, तो हम कहेंगे उर्दू में ऐसे ही होता है। सो वी नीड टू जी अंडरस्टैंड दिस। आगे उसके कोई जी और चीज आ रही है तो उसका स्ट्रक्चर बदलेगा। हमारा काम है जी हम उसको ठीक। समझें, प्रैक्टिस करें, आहिस्ता आहिस्ता खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ जी ठीक। फतहता है, यहाँ फालता है, यहाँ भी लाम पे जज्म आ रही है। जी हाँ जी, जय ठीक जमारी, है, हाँ जी। माशाल्लाह। जी तो ओके जी, तो और सिस्टर्स में से कौन फाला, वैसे हमने पढ़ तो लिया, एक बार कौन पढ़ेगा सिर्फ अरबी में? जो और मैं भी मैं पढ़ दूं? कहती हूँ सब लोग बारी लें। सिस्टर नसीम आप पढ़ लीजिए अरबी जी। में। फअल, फअलू, फअलत, फअलतु, फअलतुम, फअलना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने देखा कि ये दो टेबल हमने एक जैसे पढ़ लिए हैं। इनका सेट का तीसरा टेबल है जाला। और लोग हैंड रेज करें, आई वांट के नए लोग और लोगों को भी मौका मिले। आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? सिस्टर शाजिया माइक ऑन करें और तर्जुमे के साथ पढ़ें इसको। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जाल तू मैंने बनाया, जाल तुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया, वेरी जाला गुड। जालू जालता जालतू जालतुम जालना। गुड। सिस्टर वजीहा आप यही टेबल सिर्फ अरबी में सुना दें। जअल, जअलू, जअलता, जअलतु, जअलतुम, जअलना। वेरी गुड, माशाल्लाह, आप लोगों ने बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन की। तो बस आज ये तीनों टेबल्स थे, आपने एक जैसे टेबल है, आपने इनको याद करना था। इनको ज्यादा अच्छा याद करने के लिए आपको बोलचाल के जुमले हम देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाए। आपको एक लफ्ज पढ़ाया था हल पिछले लेसन्स में, उसका मतलब था क्या। अगर मैं कहूं हल फतहा, क्या उसने खोला, तो आप जवाब देंगे नाम फतहा, जी हाँ उसने खोला। हल फतहू, क्या उन सब ने खोला, तो आप जवाब देंगे नाम फतहू, जी हाँ उन सब ने खोला। अगर मैं आपसे पूछूं हल फतहता, क्या तुमने खोला, आपने खोला, तो आप अपने बारे में जवाब देंगे नाम फतहतु, जी हाँ मैंने खोला। अगर मैं आप सब से पूछूं हल फतहतुम, क्या तुम सब ने खोला, जैसे अभी टेबल में लिखा हुआ था फतहतुम, आप सब ने खोला, क्या आप सब ने खोला, तो आप सब अपने बारे में जवाब देंगे नाम फतहना, जी हाँ हमने खोला। तो ये वो छह के छह लफ्ज टेबल के इसमें यूज हो रहे हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें तो टेबल और भी अच्छे से याद हो जाता है ना। और टेबल इसको हेल्प करते हैं पढ़ने में और ये टेबल को हेल्प करते हैं, तो ये इससे बोलचाल से ये फायदा होता है। तो हल फालू फाला नाम फाला, हल फालू नाम फालू, हल फालता क्या आपने किया, आप कहोगे नाम फालतू, जी हाँ मैंने किया। हल फालतुम, अगर मैं पूछूं कि आप सबने किया, आप कहेंगे नाम फालना, जी हाँ हमने किया। तो ये छह लफ्ज हैं जो डिफरेंट यूज हो रहे हैं। चलें अब मैं आपसे सवाल करती हूँ, आपने जवाब भी देना है और तर्जुमा भी करना है। हल जाला, क्या उसने बनाया? नाम जाला, जी हाँ, नाम जी हाँ जाला, उसने उसने बनाया। बनाया, बनाया। हल जालू, क्या उन सब ने बनाया? नाम नाम जाला, जालू, जी जी हाँ हाँ हम हम सब ने सब ने बनाया। बनाया। हल जालता, क्या तुमने बनाया? नाम नाम जालू, जालू, जी हाँ जालतू, मैंने बनाया। मैंने मैंने बनाया। बनाया। हल जाल तुम, क्या तुम सब ने बनाया? नाम नाम जालना, जालना, जी हाँ हम सब ने जी हाँ बनाया। हम हम सब सब ने ने हम सब ने बनाया। बनाया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो पहले दो का जवाब उसी लफ्ज से दिया जा रहा है क्योंकि किसी और की बात हो रही है। अगले दो में आपके बारे में पूछा जा रहा है तो फिर आप अपना जवाब दे रहे हैं, है ना। तो इस तरह से टेबल आपका मुकम्मल होता है। अब अगर हम देखें, ये हमारे सामने है जी कार्ड। और लेसन 8 में अत्तहियातु अस्सलावातु तय्यिबात अस्सलाम अन्नबी रहमा बरक़ात अब्द इबाद सालिहीन। फिर हमने यहाँ पर पढ़ा हाजा हाजी ही गालिका तिल का हा उलाई उलाई का। ये सारे वर्ड्स एक ही जगह लिखे हुए हैं। लेसन 9 में, ये देखें लेसन 9 का हिस्सा है ये ऊपर वाला। इसमें दुरूद है अल्लाहुम्मा सल्ली आली
कमा इब्राहिम हमीद मजीद बारकता। इसी तरह ग्रामर में फ़ाला फ़ालू फ़ाइलता फ़ाइलतू फ़ाइलतुम फ़ाइलना जाला फ़तहा। तो ये शॉर्ट करके लफ्ज़ आपको दिए हैं ताकि बेसिक्स आपकी रिवाइज हो जाएं। और यहाँ पर एक्टिविटी ये होती है कि आपको चाहिए, आप कुरान मजीद या कोई पारा, फर्स्ट पारा ले लें आप और उसको रख लें, खास तौर पर हाइलाइटर और पेंसिल रखें। तो अब तक जो लफ्ज़ आपने पढ़े हैं वो यहाँ पर लिखे हुए भी हैं। फर्स्ट 9 लेसन आपके मुकम्मल हो गए हैं माशाल्लाह। अगले 11 रह गए हैं, तो बहुत हिस्सा आपने मुकम्मल कर लिया है। वो सारे लफ्ज़ यहाँ से पिक करें। ये लेसन 1 की चीज़ें, ये 2 की चीज़ें, ये 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये छोटे छोटे हिस्सों में अल्फाज के मानी लिखे हुए हैं, आपको यहाँ शायद कुछ ना कुछ नजर भी आ रहा हो। ठीक है, आप यहाँ से देखें और पारे के ऊपर से ये लफ्ज कुरान में कितनी बार आए हैं, कोई पेजेस ढूंढें, उन पेजेस पर आपको ये वाले लफ्ज इतनी बार नजर आएंगे। हाईलाइट करते जाएं, आप हैरान हो जाएंगे पहले बारे में अगर आप ढूंढें कि इतने लफ्ज आपको कुरान के आ चुके हैं। हर सफ़े पे आपको ढेर सारे लफ्ज आते हैं। ये प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि असल मकसद तो कुरान समझना है। अगर इसके बाद भी आप भूल जाएं, नमाज में समझ के ना पढ़ें, तो फिर कोर्स का क्या फ़ायदा हुआ। और आज जो नमाज अदा करें उसमें आपको तावुज़ सूरतुल फातिहा समझ के अदा करनी है। अजान सुने, फजर की अजान, इकामत, वजू की दुआ सब समझ कर होनी चाहिए। रुकू सुजूद तशहुद आज हो गया, दुरूद हो गया। तो नमाज का बहुत बड़ा हिस्सा अब आप अंडरस्टैंड करते हुए अदा करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और क्योंकि देखा जाए तो ज़्यादातर हिस्सा जो है वो नमाज का मुकम्मल हो चुका है। अगले बुध को नमाज का बेसिक जो थोड़ा सा पार्ट रहता है वो भी मुकम्मल हो जाएगा। तो उसके बाद ग्रामर में आपने काफ़ी सारे इसम में चीज़ें पढ़ी हैं, हरूफ की पढ़ी हैं, और आज फेल मादी का पहला सेट पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने कुरान के ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ना, ये कुरान में कितनी दफ़ा ये लफ्ज़ आते हैं? 27,926 बार। कितनी बड़ी बात है। अब मुझे बताएं कि इस कोर्स से पहले ये जो 4 क्लासेस आपने अटेंड की हैं, कोर्स 1 की, इससे पहले क्या आप ये दावा कर सकते थे कि आपको कुरान के 27,000 से ज्यादा लफ्ज आते हैं? तकरीबन 28,000 नहीं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हमें कर दिया, तौफीक अता की है कि हम जारी रखे हुए हैं। अब कई लोग ऐसे हैं जो मे बी क्लासेस उनकी मिस हुई हों, शुक्र करें कि आपकी मिस नहीं हुई। मिस हो जाए फौरन अगली क्लास से पहले रिकॉर्डिंग सुन लें। तो 9 सबक मुकम्मल होने पर हमने 102 बेसिक लफ्ज सीखे, जो कुरान में तकरीबन 28,000 बार आए हैं। तो अगर आपको वाकई इतनी बड़ी कामयाबी और खुशी महसूस हो रही है तो बुलंद आवाज में अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। 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 तो ये हमारे दिमाग की बैटरी जो है ना, इस कोर्स से 4 हफ्ते पहले खाली थी, तो इन 4 हफ्तों में माशाल्लाह ये ग्रीन कलर में देखें, यहाँ 30,000 के करीब हम पहुंच गए हैं। और इस कोर्स में हम 41,000 से आगे पहुंच जाएंगे, है ना। और इस इंशाल्लाह अगले कोर्सेज भी जब हम कर लेंगे तो हमने पूरे पहुंचना कहाँ है, टारगेट क्या होना चाहिए? 78,000, 78,000, ताकि कुरान के पूरे लफ्ज हमें आते हों। ठीक है इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। रोज 2 दफा कम से कम तिलावत अपनी आदत बनाएं। 5 मिनट मुसहफ कुरान से, 5 मिनट ज़बानी, आपने इतना कुछ सीखा है तो रिपीट करें, लफ्ज़ों को दोहराएं। और जो है नमाज में बदल बदल के मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें। अभी आपने वैसे सूरत फातिहा को समझ लिया है, आहिस्ता आहिस्ता आपको इस कोर्स में और भी सूरतें सिखाई जाएंगी। और अपना साथी बनाएं, कुरान का पार्टनर, उससे डिस्कस किया करें इस हफ्ते की चीज़ें तुम्हें याद हुई हैं या नहीं। कभी कभी होता है कोई एक फ्रेंड की एनर्जी डाउन हो रही है, आप उसको मोटिवेट करें कि नहीं नहीं नहीं, छोड़ना नहीं है, मैं भी कर रहा हूँ, तुमने भी करना है। तो आप अभी डिस्कस कर रहे थे ना कि आप एक दूसरे को जानते हैं, तो ये आपके कुरान पार्टनर्स हैं। आप इनको हर हफ्ते याद करवाया करें। कोई एक दिन आप लोगों का मैसेज आना जाना चाहिए कि इस हफ्ते की चीजें हो गई हैं, तुम्हारी पिछली चीजों में क्या क्या रहता है, क्या कुछ तुमने रिवाइज नहीं किया, वर्कबुक तुम्हारी कहाँ तक पहुंच गई है। एक दूसरे को हेल्प करें, बहुत जरूरी है। ठीक है, टीम वर्क, मिल के काम करना, दूसरों को दावत देना, ये सब फर्ज है, इसको हम ऑप्शनल नहीं कह सकते। और मुस्कुराइए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि उसने आपको मंतखब किया है, चूज किया है कि आप, मैं, हम सब ये सीख रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, सबको ये सादत नसीब नहीं हुई है आज आज के दौर में। तो अल्लाह के इंतखाब को नजरअंदाज मत करें। अगली बुध शैतान आपको सारी दुनिया के काम इसी टाइम याद कराएगा। आपने ये नहीं सोचना कि आपको लगेगा ये काम इस वक्त ही हो सकते हैं, तो आपने उसकी बात नहीं माननी, आपने रब की माननी है और अगले बुध को भी क्लास में प्रेजेंट रहना है। सिस्टर, सिस्टर फिर से माइक ऑन है। सिस्टर नसीम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्यों होना है हमें समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं जी। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान के हुकूक अदा करने, यानी कुरान पढ़ने, समझने
غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں کفارہ مجلس کی دعا جو کسی بھی میٹنگ کے آخر میں ہم ادا کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اور اس دعا کا مقصد ہے کہ اے اللہ، ہم نے کوشش کی ہے ہم تیری کتاب کو سمجھیں، اپنی قابلیت کے مطابق ہم نے کوشش کی ہے، اس میں جو بھی یقیناً کمی کوتاہی تو رہی ہوگی، پرفیکشن تو ہمیں ہے نہیں، تو جو بھی کہیں غلطی کوتاہی کمی ہم سے رہی ہو اس کو معاف فرما، کیونکہ پرفیکٹ تو تو ہی ہے نا۔